Hatford. And to understand how to unfold this miracle, today's webinar is organized for you all. Hello everyone, and welcome to today's webinar, The Art of Effective Teaching Using Brain Science. My name is Vandana Rotela, and I will be your moderator, and I'm excited to be hosting this session today. So once again, for those who have joined us just now, I, on behalf of Dr. K.N. Modi Global School, Modi Nagar, extend my heartiest welcome to all the attendees and invitees. It's my profound privilege to welcome Honorable Dr. D.K. Modi, President, Dr. K.N. Modi Foundation, for giving us your precious time, sir. We welcome you and thanks for joining us. We will be joined by Mr. Meghra Sharma, CEO, Dr. K.N. Modi Foundation, very briefly. I'm pleased to introduce today's speaker, Dr. Sachin Kullar, a motivational speaker, a brain science expert and trainer, Guinness Book of World Records, largest memory lesson. Dr. Sachin Kullar got many national and international awards, and to name a few of them are: he got International Award of Appreciation from Vietnam Book of Records, Vietnam, in 2015. He is also certified by Wesleyan University, USA, for understanding memory, explaining the psychology of memory through movies. He is also certified as a multiple intelligence and career counselor. Also, he is an adjudicator for India Book of Records and Asia Book of Records, and the list goes on. So, further, he has presented hundreds of webinars, and today he is going to share how to really nail your teaching and how to capture and maintain the attention of your students. Before I hand the mic over to Mrs. Gurmeet Gupta, officiating principal, Dr. K.N. Modi Global School, to welcome our speaker of the day, I have a few housekeeping items to cover about this webinar. We would love to hear from you all. If you have any questions during the presentation, please type them into the chat box. I'll bring your questions during the presentation, and we will also have a time for questions at the end. Now over to you, Principal Ma'am. Thank you, Vanna. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. One and all, and welcome to today's session. The pandemic of Corona has brought a new challenge before humanity and hence before educationalists. It has been said, change is the only permanence in the world. We as teachers, as educators, should be able to take change in our stride. Where there is a will, there is a way. When teachers realized there was no other way, they adopted to the online classes and video lessons enthusiastically and have even proved their mettle using this new technology. But realize the real pain of teachers. When all the family members are spending quality time, they are running for their isolation to prepare their videos. When people are recreating themselves through YouTubes or other channels, they are busy with uploading their lectures. The schools are passing through a very tough time. The burden of the teachers have just multiplied. But see the teachers who are facing three serious bottlenecks. The first one is stress due to economic uncertainty, concern for the safety of loved ones, and anxiety about the future. The daunting challenge of returning to schools. And the last, little access to the right knowledge or the skills to be used. So for the sake of teachers, to guide them how to manage their anxiety, their depression, and to stand as a real educator, a real fighter, Dr. Sachin Kullar is with us today. He will be guiding us, motivating us to overcome these thoughts. We welcome you, sir. So I am handovering to Dr. Kullar with a Pluto. The mind is not a vessel to be filled. The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled. Thank you. All yours, Kullar, sir.
Thank you so much, ma'am. First of all, I would like to thank each and every participant, principal ma'am, and more than I think 121 participants. And that there is a complete energy and synergy I am personally feeling in my complete body. And ma'am, you very well quoted about the change, because change is very very important, because it's all about one is the eyesight, right? Very very important. Everybody is having that, right? The second important is nazariya, how we look things, because this is during this pandemic situation, things are actually totally changed, or new opportunities, new era, new skill set, right? We have to adjust, we have to adopt that all the opportunities. So another 1 hour I am personally committing to each and every participants. After this 1 hour, you are not able to sleep in another 2 to 3 days. And if your mobile phones are silent, my commitment to all of you, today's 60 minutes is the minutes of real transformation, which we really want each and every individual. And in books also, in while you are talking to the teachers with the students, communicating with each other, transformation is there. But how transformation happens, I'm going to share with you. And before I'm sharing with you one story, there is one student, and that student is very you can say below average students. मुश्किल से ही वो बच्चा जो है वो पास होता था अपने सब्जेक्ट्स के अंदर, right? And day and night continuously tuition schools, continuously tuitions and schools, and these things are going on so long, 10 to 12 years, right? And the thing is, the most important need, जब भी टीचर उसको 7 वाली क्लास में भेजती थी कुछ भी पिक करने के लिए, से फॉर एग्जांपल डस्टर एंड चॉक, वो बच्चे को नजर नहीं आता था और वो वापस आ जाता था कि मुझे डस्टर या चॉक नजर नहीं आया। तो टीचर ने, स्कूल ने उसका नाम एक ही बच्चे का रखा, दैट इज अ डम्बू स्टूडेंट। इसको कुछ समझ नहीं आता, ये बिल्कुल मतलब इसको 10 बार चीजें समझा दो समझ नहीं आती इसको, ठीक है, और ये ग्रेस मार्क लेके पास होता है। तो टीचर्स, मैं बड़ा प्राउडली बताना चाहता हूँ, वो स्टूडेंट और कोई नहीं है, वो स्टूडेंट आपके सामने बैठा है, वो स्टूडेंट मैं खुद हूँ, ठीक है, जिसने ये सारी चीजें प्रैक्टिकली इन दी स्कूलिंग अपने ये सारी चीजें उसके साथ प्रैक्टिकली चैलेंजेस आए हैं। और मैंने आज जो मैं आपके अनदर 60 मिनट्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं वो शेयर करूंगा, मैं किताबी बातें शेयर नहीं करूंगा। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू how I can transform myself. I am the youngest CFA in Pan India. The result of CFA is only 1.5%, right? And I am one of the youngest successful, and so many international platforms I am exchanging with so many international speakers. So it's my all the gratitude and privilege to address to all of you, because this session is all this is a two-way session. If I'm talking about, it's all about discussion, it's all about questioning also, how we can overcome all these things. So before going to start this session, I'm going to introduce one of my youngest champ, my student. He is Mr. Tanish Mittal. He is the age of 13 years, and he is the youngest entrepreneur, and he is running 2 companies and already working on the project learning beyond the campus. So Tanish, if you can Yes. write add 2 words. Uh, Everybody, myself Tanish Mittal, and right now I'm 14 years old, and I started my technology company from last 5 years when I was 9 years old, and that company's name is InnoWebs Tech, and I work in the field of technology, IT development, website development, and I also because I started in an early age, so I think that teaching and guiding students is my main motive, ताकि उनको भी पता लगे कि अर्ली एज में स्टार्ट करने का क्या बेनिफिट होता है एंड हाउ दे कैन ओवरकम देयर फियर्स एंड अचीव मोर थिंग्स व्हेन दे स्टार्टेड फ्रॉम यंग एज। तो मेरे कुछ प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स या यंग स्मार्ट क्लब के नाम से, लर्न बियॉन्ड द कैंपस के नाम से, जो कि मेरे मेन प्रोजेक्ट्स हैं आजकल। एंड ड्यू टू दिस क्वारंटाइन आजकल बच्चे घर में बैठे हैं और कभी कभार बोर होते हैं, कभी कभार गेम्स खेलते हैं, तो उसकी जगह अगर मैं उनको कुछ गाइड कर पाता हूँ, उनको कुछ सिखा पाता हूँ, उनकी लाइफ स्किल्स दे पाता हूँ, so it will be an honor for me, and I'm very privileged and pleased to be seated in front of you all, and thank you so much. Thank you, Tanish. Thank you so much. So the clear cut thing, knowledge in action is power. Knowledge without action is burden. So he already sponsored US and UK by 2 major bodies about all the IT transformational things.
So more than 1200 students already attempt world records, already registered in their names in the different world records in the field of brain science. Because if I'm talking about brain science, it's a very wider area, and my specialization is thought process, belief system, how you can align your thoughts, how you can align your inner voice. That is very important. And how you can align your personality in a day-to-day life, and how you positive all the time. Because as simple as that, in the absence of light is darkness, and in the absence of darkness is light. It's all about choice. If you pick darkness, definitely there is absence of light. If you pick light, there is very clear cut, there is absence of darkness. So how we can take the things forward, because the take off to take on, very important. And before this session, I'm just sharing with you one beautiful video, the video in which so many insights, so many beautiful learnings. You will see the video, then I'm sharing with you a small 1 minute discussion after this video. I'm just sharing my screen in front of you. His voice is audible? His voice is audible to all of you? Kindly write in the chat box. Story of an eagle. What makes us human? Sometimes it. So here you see the story of eagle, as ma'am already said about the change. Because don't focus on the result, always focus on the change. Because the life of the eagle is 70 years, और 40 साल जब 40 ईयर में पहुंचता है तो उसके जो चोंच है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, राइट। वो प्रॉपरली फ्लाई नहीं कर पाता, ये शोल्डर्स, ये सारी चीजें उसकी हैवी हो जाती हैं, ठीक है। तो अब उसके पास दो ही ऑप्शंस है, एक वो
उस उन्हीं सिचुएशंस में अपने आप को खत्म कर ले, डाई। सेकंड इज चेंज, तो अपनी चोंच को वो रॉक से जोर जोर से हिट कर करके अपनी चोंच को वो बिल्कुल जो है वो एक तरह नया अवतार जिसको हम बोलते हैं वो नई छोटी कर लेता है चोंच, जिससे वो प्रॉपर खा सके, राइट। और उसी से पूरे अपने बॉडी का वो जो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, वो सारा का सारा वो उस चीज को नोचता है ताकि वो नई जिंदगी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन कभी ओवरनाइट हैपन नहीं होती, इट विल टेक टाइम, राइट। So we need to understand with this situation, because perceptions are not always equal to realities. Sometimes because we are sitting in present, because majority of the case we are always thoughts about the past, that past already gone, that past ko hum badal nahi sakte, future we are not aware about that, but present is the time you can manifest that seed. As you sow, so shall you reap, we used to taught to the students whole life. But if you talk about our practical lives, as you sow, we are sowing the seed right now and we are reaping that seed in the future. Are we sowing that seed at the moment with the positive mindset? Because all about it is the mindset. We have to align that mindset, because the passion is very, very important. Teaching is not by chance, it's by choice. Say for example, if I'm talking about 40 minutes lecture or a 1 hour lectures, because if you are having a passion, you are fully involved into that, you can teach like day and night and you are always feeling smile without any tiredness, because it's all about, because you are daily enjoying every step of the every step and every moment of the work, because you love that work. So just sharing with you my screen to all of you so that we can take this ahead. So in front of you, I'm just sharing my PPT to all of you so we can coordinate each and every step with each other. So here, if I'm talking about today's session, it's all about the mixture of positivity, right? How you can inculcate the brain science in your day-to-day teaching so that student will daily enjoy, and you should also enjoy your work on a day-to-day basis. How this thing practically happen, I'm just going to share with you. Empowering students globally through brain science, and very important quote of Albert Einstein, that is imagination is more important than knowledge. And in this platform I'm going to down the line of just 15-20 minutes, I'm going to share with you the feel of how imagination is more important than knowledge. And Einstein also said the compoundation is the eighth wonder of the world. Compounding of money, you say, compounding of your skill, you say, whatever you are learning on your day-to-day life, that definitely this will give you a huge result. Because first 90 days is difficult to adopt anything, because if you talk about genius is not all about genetics, it's all about your habits and rituals. We have to change our habits and rituals. That is our, we have, H stands for your head, A stands for your arm, right? So the B stands for your body. So how we can inculcate all these things in our day-to-day teachings and each and everything. So here is a small, again one small story, a story of 3 students. ठीक है, एक टीचर ने टास्क दिया 3 बच्चों को. फर्स्ट टास्क इज कि उसने डिगिंग करनी है. सेकंड स्टूडेंट को बोला कि आपने क्या करना है, उसमें सीड डालना है, सीड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड बोला गया बच्चे को कि आपने उसको फिल करना है. तो दीज आर दी 3 टास्क विच इज गिवन बाय द टीचर टू द स्टूडेंट, राइट. हुआ क्या आफ्टर दैट कि एक दिन जो बीज सीड मैनिफेस्ट करने वाला बच्चा था, जो सीड डालने वाला बच्चा था, वो छुट्टी पे चला गया. तो वहां पे क्या हो रहा था कि एक स्टूडेंट जो है वो गड्ढा खोद रहा है और दूसरा स्टूडेंट उसको भरता जा रहा है, खोद रहा है भरता जा रहा है, खोद रहा है भरता जा रहा है. तो एक पर्सन निकल रहे होते हैं पास से, वो बच्चे से पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो.
कहते हैं कि हम एक खड्डे को खोद रहे हैं और ये स्टूडेंट उसको भर रहा है, हमें टास्क दिया गया। तो हमारा एक दोस्त था, हमारा कलीग, तो आज वो जो है वो एब्सेंट है, वो आया नहीं है, तो उसका काम जो था वो सीड डालने का, वो आया नहीं। तो क्या इस तरह से कभी भी कोई ट्री, कभी भी कोई प्लांट उग पाएगा, कोई ग्रो हो पाएगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल, right? So if you talk about GSP, we need to understand what is GSP. That is, one is grasping, that is there, number one is grasping, second is self study, third one is pen, paper and practice, right? If I'm talking about grasping, let's understand this thing. In school, say for example, if you talk about physically also, digitally also, in school role is 30%, because teacher used to teach day and night to the students, lectures are already planned, timetable is already planned, everything is planned, right? Next is self study, that is learning by own. This seed is not important in the lives of students, this seed is also important in our life also, in a day to day life also. Because if you are not inculcate new skills or new learning in your day to day life, definitely you are outdated. In technology, we used to say we cannot ignore the technology, we can postpone the technology, right? So third one is pen paper practice, that is 20%. If middle one is absent, if middle one student is absent, you can say that is ourself also, student also, the 50% role is totally बिल्कुल खत्म हो गया, 50% role. So we need to manifest that self study in our lives also, in students life also, very very important. This will pump up the creativity area, and in our brain there are certain chemicals like oxytocin, serotoxin, that chemicals release definitely, that as some are happiness chemicals, right? Some are very useful for the creativity part. So let self study, why self study is important, to release those chemicals which will boost our day to day learnings, right? So in this case, if this seed is missing, so over 50% life we are not enjoying, 50% we are living, but 50% our productivity is gone if this seed is not there, right? So if you talk about scientifically, we need to understand. Teacher used to said students after the particular lecture, right? Kindly revise this thing, kindly revise. So in thousands of session I already delivered. In a day-to-day session, we used to ask, what is revision? What is revision? Revision is that ki whatever teacher taught, you need to just seeing these things, and after the lecture you just start reading all these things. This is not revision. Revision is revision. First, initially also, the role of the teacher, you should visualize in the form of story, in the form of, because topics are very abstract in nature, very difficult to taught. But if you can able to conceptualize, if you can able to understand in the form of story, in the form of imagine, in the form of pictures, in the form of images, student can easily understand that particular part. And what is the role of that forgetting curve, we need to understand. That is the reason we used to say कि आपने जो भी पढ़ा है, आपने आज उसको आज के आज आपने रिवाइज करके आना है अगले जब नेक्स्ट आप क्लासरूम में आओगे, बिकॉज द साइकिल इज 24 आवर्स. अगर 24 घंटे तक हम वो चीजें नहीं करते, आज जो हमने पढ़ाया हमारे टीचर ने, हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो डाउन दी लाइन क्या होता है? डाउन दी लाइन वो धीरे धीरे जो ग्राफ है वो कम होना शुरू हो जाता है. दिस इज कॉल्ड रिवीजन ग्राफ. अगर आप उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, 1 वीक बाद पढ़ेंगे, 2 वीक बाद पढ़ेंगे, 3 वीक बाद पढ़ेंगे, धीरे धीरे वो ग्राफ जो है वो डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर प्रॉपरली जो है वो रिवाइज नहीं कर दे. एंड दिस इज द साइंटिफिकली रिवीजन प्लेटफॉर्म, साइंटिफिकली रिवीजन टूल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, राइट? इसमें समझने वाली चीज है, वट एवर वी आर डिलीवरिंग टू द स्टूडेंट, और स्टूडेंट जो उसको देख रहे हैं, बिकॉज द फंक्शंस ऑफ द मेमोरी, the function of the memory, because there are 4 dimensional learning, जो teachers ने B.Ed किया है वो जानते होंगे. There are 4 dimensional learning: cognizance, kinesthesis, comprehensive and recalling. That is reading, writing, that is already happening. Reading, writing, understanding and recalling. Recalling is, first of all, we need to register that information in our brain. Memorization, number 1, मेमोराइजेशन, रिकॉल एंड रिटेंशन, रिटेन करना उसको ब्रेन के अंदर, ये तीनों
स्टेप्स जो है वो मेमोरी करती है, मेमोराइजेशन, रिकलेक्शन एंड रिटेंशन। तो जो चीजें हम बच्चे को रिवाइज कराते हैं, जो चीजें हम रिवीजन के लिए बताते हैं, डे 1 एक दिन में एक बार करना, उसमें उसके बाद उसी चीज को वीक में 2 बार करना, फिर महीने में 3 बार करना, वंस इन ए मंथ थ्राइस, राइट। उसके बाद 3 महीने में 4 बार करना, एंड देन 6 मंथ्स में उसको 5 टाइम्स जो है वो करना। दिस इज द एक्चुअल रीजन रिवीजन प्लान, scientifically revision plan, which is approved by Tony Buzan. He is the famous scientist, right? And we already developed for all the mind mapping experts are, we are also the experts of mind mapping, how you can revise 10 times faster as your revision speed earlier, right? So in this case, if you talk about challenges, so these are common challenges I am just sharing with you. Each and every student used to apply, each and every student used to daily जो face करता है challenges, how to recall quickly and avoid mistakes in examination, how to enhance understanding of the concept, how to memorize faster my all these subjects. That is very, very important because subjects are huge. Student is this is the responsibility of the student to memorize each and everything very quickly. And the most important part, how to create interest in studies, because we used to say students our interest also, because while we are taking the Zoom meetings we feel fatigue, थोड़ा थोड़ा बोरियत हमें फील होता है कि लगातार जूम मीटिंग्स देते जा रहे हैं, कुछ नया नहीं है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, इसको कैसे चीजों को किया जाए। A most important subject dream children learn is curiosity. Where the curiosity is, automatically your concentration is there, automatically your focus is there, because your focus determines your reality. जहां पे आप फोकस लेके जाते हैं अपना, जो चीज आप ध्यान से करना स्टार्ट करते हैं वो एक दिन आपकी रियलिटी बन जाता है, राइट। तो इस चीज के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू ओवरकम एग्जामिनेशन फोबिया। एक डर जो बच्चे के अंदर होता है उसको कैसे हम ओवरकम करें, एग्जामिनेशन का डर, बिकॉज इट्स ऑल गुड एज यू कैन से इफ यू यूज टू डेली प्ले क्रिकेट and one day there is a cricket trials is what, this is just only a test, but we are creating phobia. Say for example 10th board or 12th board, this is important, but that board phobia is always in the student's mind, right? And can you feel every hour students जो है वो हर एक घंटे में जो देश के कम से कम 51 से 52% बच्चे स्ट्रेस में जाते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिकली फिगर्स मैं आपको दे रहा हूँ, 51 से 52% बच्चे हर एक घंटे के अंदर। आप सोचिए, बिकॉज इसमें पूरा आपका भी रोल नहीं है, बिकॉज सिस्टम इज ऑलरेडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग स्टडी अबाउट द प्रीवियस अबाउट मकॉल स्टडी, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम, ठीक है, जिसमें जिस सिस्टम में एंटरप्रेन्योर्स नहीं चाहिए थे, क्रिएटिविटी नहीं चाहिए थी, उनको अकाउंटिंग वाले लोग चाहिए थे, उनको फॉलोवर चाहिए थे, उनको लीडर नहीं चाहिए था, तो दैट सिस्टम इज ऑलरेडी इम्पोज्ड। बट डाउन द लाइन थिंग्स आर, for last 3 years I am very observing, and I also personally met the CBSE director AK Sharma and so many other panelists, and we had a very healthy discussion because about the Indian education, because बच्चा अगर 10th में जा रहा है वो 9th का भूल रहा है, 9th में जा रहा है 8th का भूल रहा है, +1 में जा रहा है 10th का भूल रहा है। what is the purpose of study, why we are study, बच्चा पढ़ क्यों रहा है, this is the biggest question. Then he said the psychology says, we need to understand this line, the psychology says the role of the teacher, we have to convert that particular knowledge into skill, that knowledge into skill, that is the role of the teacher as per the education psychology. But unfortunately only 5 to 7% by choice will do this thing, right? Knowledge into skill, right? So how we can convert that knowledge into skill, we need to understand that parameter. And we have research also, research of top 23 schools. You are talk about Doon School, Lawrence School. I used to visit Lawrence School also. Doon, I got an opportunity to deliver this session, Dehradun, right? In which 23 schools collectively 4,700 students पे जो हमने स्टडी किया, वो क्या स्टडी किया, ये स्टडी किया हमने कि रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजन ऑफ चैलेंजेस। स्टूडेंट चैलेंजेस तो फेस कर रहा है, एंड व्हाट आर द रीजन ऑफ दोस चैलेंजेस। सो नंबर 1 रीजन इज identifying the key point. Say for example, if I open any of the textbook, chapter number 1, I flip that chapter number 1 in front of me, and in one page there is approximately, say for example, 200 words.
but the most important words I need to memorize, and most important relevant words are only, you can say, 40. That 40 words I need to memorize and I need to understand, but that 240 words, out of that, say for 260, that 40 words I need to memorize, that 260 words are struggling in my mind. They are not able to open in that opening in my mind, right? And वो struggle कर रहा हूँ कि मैं उसकी वजह से वो relevant information भी मैं कर नहीं पा रहा. That is very very important. और इसके लिए मैं आपको एक, I just wanted to share with you my previous YouTube video in which I strongly said, रामायण में जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई, उस टाइम पे हनुमान जी को एक कारभार सौंपा गया, एक काम दिया गया उनको कि आप जाकर संजीवनी बूटी लेकर आइए. तो हनुमान जी एकदम तैयार हो जाते हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए. वो हिमालय पे जाते हैं. अब उनको वहां पे संजीवनी बूटी, इतना बड़ा हिमालय का पहाड़ है, उनको वहां पे संजीवनी बूटी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. वो संजीवनी बूटी, उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया. तो वो भगवान थे, वो पहाड़ उठा सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा बच्चा रोज वो पहाड़ उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम हेल्प आउट नहीं कर पा रहे कि उनको वो आइडेंटिफाई कर पाए वो की पॉइंट्स जो उसका एक्सट्रैक्ट है, जो उसकी संजीवनी है उसकी लाइफ की. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन, बिकॉज अवर ब्रेन इज द फोटोग्राफिक मेमोरी, राइट? एंड ऑर्गेनाइज दैट इंफॉर्मेशन इन अवर मेमोरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. से फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक बहुत बड़ा स्टोर हो, अब रोज चीजें फेंकते जा रहे हो, रोज चीजें फेंकते जा रहे हो, एंड एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, you need a 1-year-old newspaper. You are not able to recollect that newspaper because your entire store is hosh posh. Say for example, if that store is fully organized in different racks are there. One rack is full of there are old newspapers, second is old your clothes, third one is old your old shoes, your utensils. So this is the organized store. When you enter into the store, you need your old utensil. You go to that particular rack and you pick that particular utensil. So this is very easy because the information is organized. Because our brain, our mind is the photographic memory. Whatever you see, whatever you are seeing, you are easily. And more important fact, 3 घंटे की मूवी देखकर कभी भी कोई भी चीज हम भूलते नहीं है जिंदगी भर, चाहे हम हैं चाहे बच्चे हैं. Whole life, the entire movie we are able to recall, we are able to memorize. But that 3 minutes definition, student are not able to memorize. Continuously student are again and again cramming, because cramming is one of the major habit and one of the major cause of the stress. And third one, the third challenge is revising the chapters quickly. This is the peer pressure to each and every student. Student can continuously revising again and again without understanding of the concept. And fourth one is memorization and recall. End of the, when student, last moment of the examination hall, when student supposed to enter that examination hall, student continuously reading, repeating each and every page. Once he or she enter into the examination hall, paper is there, right? And the same question he or she, जिसने बहुत बारी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया याद, बट उनको वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं. और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए, एंटायर चैप्टर ही और शी कैन इजीली रिकॉल. द थिंग इज दैट इज ऑलरेडी इन देयर माइंड, बट हाउ टू मेमोराइज एंड हाउ टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट, हाउ दिस थिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल. Every student want better results, even us also. We want to become the better version. We want to become the better version of ourselves. When you tell yourself, that is transformation. When you tell yourself, transformation is not transformation unless you enhance your language. What is that language? That is the language of your inner voice. That is the language of your thoughts. Yeah, that is the language of for yourself. If your language is, say for example, coach, if you talk about athlete, if you talk about any of the sport, coach used to daily talk to the participant, daily talk to their students कि आपने फर्स्ट आना है, आपने इस तरह से भागना, आपने इस पैरामीटर को देख के भागना है. लेकिन जो भागने वाला अपने आप से ये कह रहा होगा कि मैं ये रेस नहीं जीत सकता, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रेस नहीं जिता सकती. कोच ने अपना काम कर दिया, उसने उसको खाना दे दिया, लेकिन खाना उसको खुद पड़ेगा. दैट इज द इनर वॉइस. हमें परेशान क्या करती है? छोटा छोटे इफेक्ट्स. आज हम केक खाते हैं, हमें हैबिट पड़ती है, ठीक है. लिक्विड जो बंदा ले रहा है, थोड़ी थोड़ी ले रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन डाउन द लाइन ऑफ
लॉन्ग टर्म 3 ईयर डाउन द लाइन, 5 ईयर डाउन द लाइन उसका इफेक्ट जो होता है ना वो इतने से इतना बड़ा हो जाता है। सो इनर वॉइस को हमें अपने आप को चैनलाइज करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि अपना बेटर हम वर्जन बन सके। यू डू नॉट गेट व्हाट यू डिजायर, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। जो आप डिजर्व करते हो ना वो आप हो। एंड टेस्टामेंट 2 में भी लिखा है, यही चीज लिखी है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। एंड सेकंड कोड बड़ा ब्यूटीफुल है, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। सो जन निर्मल जिन आप पछाता, वही अपने आप को डिजर्व कहलाने के लायक बनेगा। डिजायर्स तो सारी दुनिया की हैं, ठीक है, तो डिजर्व आप वो जो आज हो ना, आप जो आपके पास आज के टाइम पे है, वो जो डिजर्व करते हो आपको वही मिला हुआ। तो उस डिजर्वेंस को आप, उसकी कैपेसिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हो? जब तक आप अपने हैबिट्स को, जब तक आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करते, अपनी इनर वॉइस को चैनलाइज नहीं करते, राइट? क्योंकि द रोल ऑफ द टीचर इज व्हाट? विद्या की ताकत शुरू से भगवान ने हर बच्चे में दी है, हर इंसान में दी है। टीचर, द रोल ऑफ द टीचर क्या है? उस चीज को तराशना, दैट इज द रोल ऑफ द टीचर। एक बच्चे को तराशना, एक बच्चे को उसके इनबॉर्न टैलेंट को परखना, उसको अंडरस्टैंड करना, दैट इज द रोल ऑफ द रियल रोल ऑफ द टीचर। सो एवरीबडी, एवरी स्टूडेंट वांट, एक ही चीज चाहता है कि मेरा A+ ग्रेड आ जाए। A+ ग्रेड की होड़ पड़ी हुई, अभी पीछे 10th+2 के रिजल्ट्स आए एंड आई सॉ ईच एंड एवरी न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ रिजल्ट्स, 98.2, 98.3, माय 10 स्कोर इज 52%। ग्रेस मार्क्स में मैं मैथ्स पे पास हुआ था। और I already take thousands of interview, believe me। और उस इंटरव्यू में अगर मेरे पास कोई +2 का कैंडिडेट बैठा और एक ग्रेजुएशन का बैठा है ना, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा? इंप्रेशन और एक्सप्रेशन। अगर वो +2 वाला मुझे इंप्रेशन और एक्सप्रेशन देने में ज्यादा कामयाब, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर उसका एक्सपीरियंस है, उसके अंदर उसका स्किल है, मैं उसको सबसे पहले पिक करूंगा। और बिलीव मी, हम एक बहुत, मैं अभी आपसे शेयर नहीं करना चाहता, 2 साल बाद हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं जो हम लेकर आएंगे, जिसमें जो अखबार की हेडलाइन होगी वो ये होगी, म्यूजिक में बच्चे ने टॉप किया, पेंटिंग में बच्चे ने टॉप किया, डांस में बच्चे ने टॉप किया, IT में बच्चे ने टॉप किया। ये उसकी हेडलाइन होगी, ताकि जो बच्चा 60% भी ला रहा है ना, हम उसको ग्रेटिट्यूड के साथ थम्स अप करेंगे, उसकी पीठ थपथपाएंगे। डेफिनेटली आपकी मिसाइल्स जो है ना वो स्कूल के अंदर मिसफायर हो जाए, लेकिन जिंदगी में कभी मिसफायर नहीं होनी चाहिए। हम उनको ये करना सिखाएंगे, राइट? तो इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैं इसको इस तरीके से लेके चलता हूं, से फॉर एग्जांपल एवरीबडी वांट्स 90%+ मार्क्स in this world. If you talk about, there are 2 things, one is science and second is art, right? If you don't know how to drive a bicycle, that is the science for you. If you know how to drive a bicycle, that is the art for you. Definitely same as cooking, I am not aware about cooking, so that is science for me. We need to understand, I need to study first of all, but after learning, ठीक है, वो मेरे लिए एक आर्ट बन जाएगा जब मैं उसको करना शुरू कर दूंगा। हर चीज में टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली। कभी हमने ये सोचा कि पढ़ाई में लगने वाला वक्त बच्चे का पहले भी 10-10 घंटे था, आज भी 10-10 घंटे है। तो व्हाट इज द रोल? तो यहाँ पे ये वक्त कम होना चाहिए, जैसे जैसे हम आगे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ ये वक्त बढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली ये वक्त कम होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास वो तरीके को सीखने की जरूरत है। कहते हैं ना, वो एक कहानी है लकड़हारे की कहानी, डेली दैट वुड कटर, ठीक है, यूज्ड टू गो टू जंगल, और वो रोज 8 पेड़ काटता है, डेली 8 पेड़ काटता है, लगातार वो रोज काटता जाता है। एंड डाउन द लाइन ऑफ 1 मंथ, 1 महीने बाद क्या होता है, उतना टाइम लगा रहा है वो 8 घंटे, लेकिन उसके 8 पेड़ की बजाय 4 पेड़ कट रहे हैं। वो बड़ा फेडअप हो जाता है, वेरी स्ट्रेस, वेरी फेडअप। देन ही गो टू हिज मास्टर कि मेरे से ये चीजें हो रही हैं, मैं क्या करूँ, मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ, उतना टाइम लगा रहा हूँ। तो एक ही चीज कहता है कि आपने अपनी कुल्हाड़ी को तीखा किया। तो कुल्हाड़ी के बारे में कभी भी एक बच्चा नहीं सोचता, बिकॉज लाइफ इज टू बिजी, लाइफ इज ऑल अबाउट डिलीवरी डिलीवरी डिलीवरी। वी आर डिलीवरिंग दिस सेशन डे एंड नाइट। हैव वी एनालाइज्ड दैट सेशन जो हम इतने सालों से कराते आ रहे हैं, कि क्या हम इसमें एक स्टोरी ऐड कर दें, जो स्टोरी बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। एक इंसिडेंट, एक एक्सीडेंट, एक सेंटेंस will change the life of each and every individual. It all depends how you take it, right? तो 90% प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है,
और एक बच्चा 15-15 घंटे क्या कर रहा है, अपने बाकी स्किल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वो। ठीक है, ये उसी तरह से है कि हमने घर में एक मच्छर को मारना हो, एक मच्छर को, और हमने अपना पूरा घर जला दिया उस मच्छर को मारने के लिए। ठीक है, तो यही चीजें हो रही है, डे एंड नाइट ये चीजें हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, बर्निंग हाउस फॉर किलिंग मॉस्किटोज नहीं करना, हमने सिर्फ उस मच्छर को मारना। और तरीका मैं जो आज आपको बताने वाला हूं, ऐसा ब्रेन साइंस का तरीका आपको बताने वाला हूं जो आप अपनी डे टू डे टीचिंग में इंस्टेंटली ऐड भी करेंगे और यू विल सी रिजल्ट इमीडिएटली। और आज मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट देकर जाऊंगा, बिकॉज मेरी आपसे कमिटमेंट हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन की कमिटमेंट हुई है आज, राइट। सो कैसे क्या करना चाहिए, इफ यू टॉक अबाउट how to achieve a goal, definitely hard work is very very important in a day to day life. Hard work is equally very very important, but smart work is also very very important, because if smart work is not there ना, आज के टाइम पे कहते हैं ना, फर्स्ट मूवर के साथ साथ फास्टेस्ट मूवर बनने की जरूरत है, फर्स्ट मूवर के साथ साथ, ठीक है, फास्टेस्ट मूवर बनने की जरूरत है, राइट। तो फर्स्ट मूवर तो है ही है, अगर आप किसी भी चीज में फर्स्ट मूवर है तो फास्ट मूवर आप कैसे बनेंगे। ठीक है, पहले होता था सर्वाइवल फॉर क्विकेस्ट, अब सर्वाइवल फॉर फास्टेस्ट है आफ्टर दिस कोरोना, राइट। सो इसको हम कैसे आगे लेकर जाएं, कैसे अपने गोल को अचीव करें, हमें ये देखने की जरूरत है, राइट। तो इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो मैंने अभी आपको एक आपके सामने एक इमेज आई है, अभी आपके सामने एक इमेज है, एक आप देख रहे हो, एक बाहर एक पर्सन है, बहुत ज्यादा उसके पास बाहर है, और नीचे जो उसने व्हील नहीं लगाया हुआ, स्केयर लगाया हुआ, और वो उसको लेके जा रहा है। साथ वाला पर्सन उसको बोलता है कि यार ऐसा करो, आप ये व्हील जो है वो यहाँ पे लगा लो, आप अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच सकते हो। ठीक है, तो वो कहता है नो 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 थैंक्स, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है सुनने का, उसका वेसल जो है वो एम्प्टी नहीं है। कहते हैं ना, वेसल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर हमारा जो बर्तन है वो बिल्कुल एम्प्टी होगा, तो वो पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, पांचवी बरसात में भर जाएगा। लेकिन अगर वो वेसल उल्टा होगा तो 10-20 बरसातें होती जाएं, तब भी वो वेसल कभी सारी जिंदगी नहीं भर सकता। वेसल जो है वो ऊपर होना बहुत जरूरी है कुछ भी सीखने के लिए, बिकॉज लर्निंग एक चीज से शुरू होती है, आई डोंट नो एनीथिंग। देखिए फिर उसको लर्न करने में कितना मजा आता है। बच्चे क्यों सीखते हैं, क्योंकि बच्चों को कभी ये नहीं होता कि मुझे सब कुछ आता है। When I used to give the teacher session workshop 2 to 3 days की जो वर्कशॉप्स होती हैं हमारी, तो उसमें मैं एक बाउल रखता हूँ अपने पास, उसमें हर टीचर को बोलता हूँ कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है ना, आप उस पे स्लिप पे लिखिए। वो सारी स्लिप पे मैं क्वालिफिकेशन लिख के उस बाउल में भरवा देता हूँ, और मैं टीचर को बोलता हूँ कि मैं भी बच्चा हूँ, आप भी बच्चा हूँ, अब हम सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी जितनी क्वालिफिकेशन है वो इस बाउल में आ गई है। ठीक है, अब आपके पास आपके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं बची। तो यहां से लर्निंग शुरू होती है, आई डोंट नो एनीथिंग से, आई नो एवरीथिंग से स्टार्ट नहीं होती, राइट। सो आर्ट ऑफ लर्निंग है क्या, इसको जानने की जरूरत है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज दैट आर्ट ऑफ लर्निंग। हमें ये सीखने की जरूरत है। हम कहते हैं इसमें में हमारा स्लोगन है, डोंट स्ट्रेन दी ब्रेन, ट्रेन दी ब्रेन। जी हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डोंट स्ट्रेन दी ब्रेन, ट्रेन दी ब्रेन। हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करने की जरूरत है। एक शेर जंगल में जब आप उसको देखने जाते हैं ना, आप एक ही प्रे करते हो कि यार कहीं मैं सेफ्टी से उसको देख पाऊं, वो मेरे पास ना आ जाए, दूर दूर से देखो, राइट। और वही शेर को आप जब सर्कस में बैठे देख रहे होते हो तो आप तालियां बजाते हो। शेर वही है, लेकिन फर्क कहां पर है, फर्क है उसकी ट्रेनिंग का। वहां पे वो जो टाइगर है, वहां पे जो लॉयन है, तो दैट इज ट्रेन्ड बाय देयर मास्टर। सी द डिफरेंस ऑफ ट्रेनिंग। इफ यू कैन ट्रेन योरसेल्फ, इफ यू कैन अलाइन योर थॉट्स, you can do wonders, you can achieve anything in your life, right? So here, learn the art of learning, we need to understand our brain, right? Our brain is divided into two hemispheres, हम जानते हैं, left hemisphere और right hemisphere. There is a theory called Nobel Prize winning theory in the year of 1984 that is called Rogers-Sperry theory, जिसको Nobel Prize मिला है। ठीक है, उसमें क्या उन्होंने किया, लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट और राइट ब्रेन डोमिनेंट के बारे में बताया। लेफ्ट ब्रेन पीपल, ठीक है, लेफ्ट ब्रेन पीपल्स आर लॉजिकल पीपल्स, कैलकुलेटिव पीपल्स। हर चीज के लिए वो एक्चुअली जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, वो हर चीज को बड़ा तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। बिकॉज अब देखिए जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे ना, मेजोरिटी वो राइट ब्रेनर्स होंगे।
कहते हैं ना, जो इंजन होता है, ट्रेन का एक इंजन होता है, उसकी स्पीड क्विकेस्ट होनी चाहिए, पीछे के सारे ट्रेन के डब्बे उसके साथ ऑटोमेटिकली चलते हैं. दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द सिस्टम. तो दैट इज नंबर्स, लाइंस, लिस्ट, लॉजिक, दैट इज द पार्ट ऑफ लेफ्ट ब्रेन, राइट. और राइट ब्रेन की मैं बात करूं, अगर राइट ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, राइम, रिदम्स, कलर्स, शेप्स, इमेजिनेशन, मूवीज, डे ड्रीमिंग, मैप्स, these are the part of your right brain. 21st century era is the whole brain, and 1984 की जो नोबेल प्राइज विनिंग थ्योरी है, that is also the theory of whole brain. जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंट मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम देखते हैं, तो हम जब होल ब्रेन लगाएंगे, एट द टाइम ऑफ वॉचिंग द मूवी वी आर यूजिंग अवर होल ब्रेन, because left brain understand the left brain understand the dialogues, and right brain understand the images, climax, right, and pictures, faces. आपने कई बार देखा कि आप किसी इंसान को 5 साल पहले मिले हो और 5 साल बाद आप मिल रहे हो, आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा, बस शक्ल से आप उसको इमीडिएटली जज कर लेते हो कि यार मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ, बिकॉज दैट इमेज इज इन द राइट ब्रेन, उसने इमीडिएटली अपना काम कर दिया. बट लेफ्ट ब्रेन जिसमें नंबर्स पड़े थे, शब्द पड़े थे, वो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो. तो टाइम है होल ब्रेन का, दिस इज द टाइम होल ब्रेन. अब होल ब्रेन से हमने इसको सिनर्जी बनानी है, इसकी सिनर्जी बनानी है. माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ आवर कंप्यूटर? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर? हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करता है? विच लैंग्वेज कंप्यूटर फॉलोज? 0 1 binary language, absolutely. Tania Singh, absolutely. Yeah, Anush Tiwari sir, ठीक है. Machine itself is the language. Binary, yes, absolutely fine, absolutely fine. Thank you so much. And my second, very quickest answer, very good. And my second question, respected teachers, to all of you, what is the language of our brain? What is the language of our brain? Signals is not the language. Vandana ma'am, signals is not the language. Signal itself is a tool actually. Images, yes, very clear, very good. Vikas Bala ma'am, very good. Emotions, definitely that is the part, actually part of the brain, that is not the language. Coding, absolutely not the language, right? Multi-language is not the language. Imagination, definitely, absolutely, very near. Yes, Dr. Ken Modi sir, absolutely right. Imagination, thank you Modi sir. Imagination. So images, if our brain only process images, our brain not understand quickly text. What is the challenge of the student? How to convert that text into images? But unfortunately, if you talk about our education, 76% of the subjects are logical subjects. If you talk about maths, it requires logic. If you talk about science, it requires logic. If you talk about English, it requires logic. And only 24%, if you talk about part of history, part of some maps, these are the part of our images, right? But 76% is logical. So there is the conflict of left and right brain. How we can merge, how we can stimulate, how we can coordinate both the brains at the same time. In front of you, two things. One is textbook, second is the magazine, a beautiful magazine. आप किसको पिक करना पसंद करेंगे, टेक्स्ट बुक को या मैगजीन को? आई एम श्योर आप पसंद करेंगे मैगजीन को, ठीक है? बिकॉज इन मैगजीन there are different set of colors, images, which our brain understand. That is the natural language of the brain, and it builds a curiosity also to pick that particular magazine. Why a 5-year-old kid is a genius? Because he or she daily used to play with colors, right? In our life, why our life is monotonous? In our life, there is only one pen, one color, that is called blue pen. Say for example, if you prepare a notes with 3 or 4 colors, it looks very beautiful. Your brain and your curiosity is double to revisit that note again and again and again, notes to that particular notes. So there is one activity I want you to be involved in. This activity, very important activity,
that is called name the color challenge. So in front of the screen, these are the different set of colors. First is green color, second is yellow color, then after blue color, green color, red color, blue color, green color, yellow color. You are able to recognize that colors, right? Now the activity starts. Here in your screen, there is one color that is called red color, and right जो किया हुआ है वो क्या किया हुआ है, BLUE, blue, right? So अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर फटाफट से मैं फ्लिप करूंगा, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने लाउडली, आपने क्या करना है, रीड क्या करना है, आपने ध्यान से सुनिए, रीड आपने क्या करना है, लाउडली कलर को बोलना है आपने, रीड वर्ड नहीं रीड करना, कलर को आपने बोलना है। तो मैं एक्टिविटी स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। Red, black, green. So you see here is the conflict because your left brain read the word, उसका जो अपना काम, उसने वो अपना काम करना है, that read the color, that read the what, that read the word, and your right brain struggles to override that information with the color. So here is the conflict. This is number one conflict. Second conflict I am just sharing with you. मैं आप सभी को स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, ठीक है? आपने क्या करना, अपना राइट हैंड बाहर निकालिए इस तरह से, जैसे मैंने निकाला अपना राइट हैंड, इस तरह से बाहर निकालिए राइट हैंड अपना। मैं आपको अभी कंफ्लिक्ट फील कराना चाहता हूँ, व्हाट इज द कंफ्लिक्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, ठीक है? आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड को आगे की तरफ मूव करना है, आगे की तरफ, एब्सोल्युटली क्लॉकवाइज, ब्यूटीफुली you are able to do. It means your left part of the brain is working very well because there is a vice versa relationship to our body, left and right part of the brain. अब यहाँ इसको स्टॉप कर दीजिए। अब लेफ्ट आर्म बाहर निकालिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज अंदर की तरफ अपने मूव करना है, लेफ्ट को अंदर की तरफ मूव करना है, नहीं राइट को आगे की तरफ आपने किया, बस पहला टास्क क्या था, राइट को आप आगे की तरफ कीजिए, क्लॉकवाइज कीजिए आगे की तरफ। अब इसको स्टॉप कर दिया। अब लेफ्ट को आपने क्या करना है, एंटी क्लॉक करना है, अंदर की तरफ करना है लेफ्ट को मूव। यस, बिल्कुल ठीक है। अब दोनों को इकट्ठा करके देखिए जैसे मैं कर रहा हूं स्पीड पे, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। नहीं हो पा रहा है, आई एम 100% श्योर। आई थिंक सूरज पाल सर को मैं देख पा रहा हूँ, वो कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया सूरज पाल सर। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट योर सब्जेक्ट्स, विच सब्जेक्ट्स यू आर टीचिंग। सो द थिंग इज, मेजोरिटी केस में आगे जाएगा या पीछे जाएगा, आपका इस तरह से नहीं जाएगा। बट हाँ, यस, विभम मैम को देख पा रहा हूँ, आपने करना स्टार्ट कर दिया, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। सो आप देखिए, आप इसको मेजोरिटी केसेस के अंदर आप इसको कर नहीं पाएंगे, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द एक्सरसाइज ऑफ होल ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द टॉप एक्सरसाइज ऑफ न्यूरोबिक, जिसमें हम बच्चे को बोलते हैं अगर आप 2 से 3 मिनट डेली करते हो तो आपका होल ब्रेन जो है, आपका जो सोचना है, आपका जो एक्सरसाइज जब ये 3 मिनट करते हो तो आप होल ब्रेन की तरह, आप होल ब्रेन को आगे रख के सोच पाते हो, ठीक है? तो मैं आपके सामने एक फॉर्मूला रखने वाला हूँ, होल ब्रेन फॉर्मूला, ठीक है? होल ब्रेन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो कुछ हम याद करते हैं हमें याद नहीं होता। ये तो बिल्कुल क्लियर है। अभी हमें कुछ याद करने के लिए बोला जाए तो हमें याद नहीं होगा। मूवीज हम याद करने के लिए नहीं देखते नहीं है, सीरियल्स हम याद करने के लिए देखते नहीं है, बच्चा छोटा कार्टून जो देखता है वो याद करने के लिए देखता नहीं है, फिर भी वो याद रह जाती है उसको चीजें। जो हमें याद होता है वही हमें याद रहता है। और मैं बताना चाहता हूं आपको, इफ यू 50 एनी इंफॉर्मेशन 50 टाइम्स आप उसको रीड करें, 50 टाइम्स, 30 टाइम्स आप उसको राइट करें, 20 टाइम्स उस इंफॉर्मेशन को आप बार बार सुने और एक बार उस चीज को देख लें, विच इज द मोस्ट इजी आउट ऑफ 4। रीडिंग इज इजी, राइटिंग इज इजी, हियरिंग इजी, और एक बार देखना आसान है। क्या आसान है सबसे ज्यादा? I am eagerly waiting for your answers in the chat box. Which one is the most easy out of 4? Absolutely, seeing, absolutely. Thank you so much to all of you. Yeah. Seeing is very, very important. Seeing is in ये 3 चीजें एक तरफ, seeing एक तरफ। आप गाड़ी में बैठ जाओ, आपको 92.7 FM सुनना है, ठीक है? 92.7 और 102.FM लगा हुआ है। सारी जिंदगी आप कोशिश करते रहो, हजारों किलोमीटर आप ट्रेवल कर लो, यू आर नॉट एबल टू लिसन जब तक आप उसको ट्यून नहीं करते। सो हियर वी नीड टू ट्यून अवर सेल्फ, हियर वी नीड टू ट्यून
हमें अपने अप्रोच को बदलने की जरूरत है, हमें तरीके को बदलने की जरूरत है। ठीक है, वो तरीका क्या है? कभी आप एक उंगली के ऊपर स्टिक खड़ी करके देखिएगा, ठीक है, जब तक आप स्टिक के सबसे नीचे उंगली के टिप पे देख रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू बैलेंस दैट स्टिक। अगर उंगली भी वही है, आप भी वही हो, आंखें भी वही है, जब आपने नजरिए को बदला, जब आपने स्टिक के सबसे टॉप पे देखा, यू आर एबल टू बैलेंस दैट स्टिक, राइट? तो हियर इज द डिफरेंस। सो आज मैं सीक्रेट रिवील करने वाला हूं अभी आपके सामने। द सीक्रेट इज रिवील्ड। व्हाट इज दैट सीक्रेट? आई एम शेयरिंग विद यू द ब्रेन साइंस प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स जो है, ये जब आप अपनी डे टू डे टीचिंग में इंटीग्रेट करोगे ना, बिलीव मी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप मुझे कोई बुक दीजिए, ठीक है, 250-300 पेज की, ठीक है, मैं उसको 2 मिनट फ्लिप करूंगा, 2 से 3 मिनट फ्लिप करूंगा, उसके कुछ पेजेस, 100-150 पेजेस, और उसके बाद आपके सामने वो बुक होगी, ठीक है, आप मुझे पूछिए, मैं पेज नंबर वाइज आपको सारी चीजें बता दूंगा। क्योंकि ये एक फाउंडेशन स्टोन है ब्रेन साइंस का, जो मैं आपको देने जा रहा हूं। एक ऐसे सिद्धांत, जिस सिद्धांत को एक बार आपने सीख लिया ना, आप अपनी डे टू डे टीचिंग्स में यू कैन इजीली अप्लाई इन अ डे टू डे लाइफ, एंड यू विल सी द वंडर्स, नथिंग विल स्टॉप, right? So these are the 7 principles, that is CRISMAS. If I'm talking about C, that is called concentration, ridiculous thinking. Third one is imagination. Fourth one is sleep. And then after fifth one, memory technique, that is mnemonics. Then after association, last but not the least, that is called science of belief. Very, very important, right? तो मैं आपको बताने वाला हूँ कंसंट्रेशन। हम जनरली बोलते हैं कि बच्चे की जो कंसंट्रेशन है वो खत्म हो गई है, बच्चे की कंसंट्रेशन है वो वीक हो गई है। दैट इज नॉट देयर। कंसंट्रेशन इज ऑलवेज देयर। इफ यू टॉक अबाउट अ स्टूडेंट, स्मॉल स्टूडेंट, अगर वो कार्टून नेटवर्क देख रहा है ना, आप उसके सामने जाके थाली रख दीजिए खाने की, वो 1 घंटे बाद भी आप उसके रूम में आएंगे ना, वो थाली एज इट इज पड़ी होगी, बच्चा आराम से कार्टून नेटवर्क देख रहा है। ठीक है, अगर 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 मैं आपसे ये कहूँ, से फॉर एग्जांपल, कि ये लॉकडाउन है, हम सभी जानते हैं लॉकडाउन है, ठीक है, और हम सभी अपने अपने रिस्पेक्टिव घरों में बैठे, ठीक है, हमें बहुत डर है, बहुत फोबिया, अपने कहीं ये प्रॉब्लम हमें ना हो जाए। हर वक्त न्यूज़ चैनल्स पे ये नेगेटिविटी देख के हम पैक्ड हुए हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर मैं लास्ट में आऊँगा, कैसे इसको ओवरकम करेंगे। आप ये देखिए, अगर मैं बोलूँ आपको, ठीक है, कि आपने क्या करना है, स्कूल जाना है, स्कूल में एक दीवार तोड़नी है, तो मेरे हिसाब से कितने टीचर्स जाएंगे? आई एम नॉट श्योर। उन्होंने कहना है यार स्कूल में जाना है, स्कूल में जाके दीवार तोड़नी है। पहली बात तो ये घर से स्कूल तक जाएंगे, कोरोना के 100 तरह के इफेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद जाके स्कूल प्रीमाइसेस में एंटर करेंगे, सैनिटाइज करेंगे अपने आप को अगेंस्ट सो मेनी इफेक्ट्स। फिर तीसरा, मैं दीवार तोड़ूं, क्यों तोड़ूं? अब मैं आपको दूसरा फेज देता हूं। स्कूल मैनेजमेंट ने ये कहा है कि एक दीवार है, वो आपको सभी को जूम के थ्रू दिखाई कि ये दीवार है, 10 करोड़ रुपए इस दीवार के पीछे है। जो टीचर सबसे पहले स्कूल में आकर दीवार तोड़ेगा, उसको वो 10 करोड़ मिलेगा। आई एम श्योर सारी जूम मीटिंग्स छोड़ करके, चाहे आपको कोई आपका बाइक मिले ना मिले, चाहे कोई गाड़ी मिले ना मिले, कुछ भी ना मिले, आप पैदल भागते हुए स्कूल तक पहुंच जाओगे, और वो 10 करोड़ के लिए आप कुछ भी करोगे, बिकॉज योर वाई इज क्लियर। व्हेन योर वाई इज क्लियर, योर हाउ इज अपीयर। बर्निंग विशफुल थिंकिंग वर्सेस बर्निंग डिजायर। अभी क्या है कि हम चाहते हैं हम पतले हों, हम चाहते हैं हम पॉजिटिव हों, ठीक है, हम चाहते हैं हम ये करें, हम चाहते, दीज आर ऑल विशफुल थिंकिंग्स। बर्निंग डिजायर क्या होती है? आपकी बेली में आग लगी होनी चाहिए, आग, कुछ भी करने के लिए, इफ यू वांट टू डू इन योर लाइफ, दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। तो यही बर्निंग डिजायर, जब आपका वाई क्लियर हो जाता है ना, तो आप किसी भी purpose of your life is clear, your choice is clear, you can do wonders, right? Or concentration is the one principle. This is the root of all the higher abilities in a man. Where the concentration is there, focus is there, automatically your interest is there, result will appear, definitely it will be appear, right? तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड रिडिकुलस थिंकिंग। जो चीजें अजीब होती हैं वो हमें भूलती नहीं है कभी भी, ठीक है। भूलती क्यों नहीं? जैसे किसी एक टीचर है, ठीक है, सपोज करो एक शादी में आप सब गेट टुगेदर हुए, ठीक है, एक मेल टीचर है, उन्होंने ग्रीन कलर का ब्लेजर पहना है, नीचे से शॉर्ट्स पहने हैं, साथ में टाई लगाई है, शायद वो कैरेक्टर हमें सारी जिंदगी याद रहेगा। वो अमन सर को ना हमने उसमें देखा था। और एक शादी में देखो जो लेट लेट के पर्सन डांस कर रहा होता है, वो सारी जिंदगी हमें कैरेक्टर याद रहता है। अवर ब्रेन ऑलवेज रजिस्टर रिडिकुलस
better than regular. I hope you all enjoying Kapil Sharma show. Majority हम entertainment देखते हैं, सब चीजें देखते हैं. Is there any logic in that show? No. There is the ridiculousness. अजीब, different from rest. कहते हैं ना better than best बन जाओ अपनी जिंदगी में, या different from rest बन जाओ, जिससे आप पहचाने जाओ, आपका किरदार पहचाना जाए. राइट. नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन में भी बोला था कि मैं जब भी किसी स्कूल में विजिट करता हूँ, मेजोरिटी मैंने देखा है, ये आर्टिकल मैंने देखा है, ये थॉट मैंने देखा है, दैट इज इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज. अब ये तो हम समझते हैं कि आइंस्टाइन जी ने कहा, ऑब्वियसली वो बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ये चीज कही है, तो इसके पीछे कोई कारण होगा. राइट. तो मैं आज आप सभी को इमेजिनेशन फील कराना चाहता हूँ, महसूस. तो आज मैं चाहता हूँ, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 2 मिनट के लिए आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें. मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाऊंगा. आपने ये फील करना है कि आप जूम मीटिंग में नहीं हो, आप मुझे सुन रहे हो कानों से, और आप उस इमेजिन आपने ये करना है, यू आर दी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको. क्लोज योर आइज एवरीबडी इफ यू वांट टू रियली फील दैट पावर ऑफ इमेजिनेशन. क्लोज योर आइज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. मैं देख पा रहा हूँ. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. अब इमेजिन कीजिए कि आप घने जंगल में जा रहे हो. ठीक है. दूर दूर तक घना जंगल, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक घना जंगल है. लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ बिग ट्रीज विद लॉट ऑफ लीव्स, विद लॉट ऑफ, घना जंगल है पूरा. जाते जा रहे हो, 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 स्टेप्स लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो. एक टाइम पे जाके आप पूरा पसीने से भीग गए हो. एक टाइम पे जाके आपकी टांगे बहुत दर्द कर रही हैं, जोरों से आपको भूख लग रही है. भाई गॉड यार, आसपास से कुछ खाने को मिल जाए, कुछ यम्मी खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए यार. मैं आज दूर आप देखते हो, आपको एक पेड़ नजर आता है, ग्रीन पेड़ विद ब्यूटीफुल प्लगिंग ऑफ ऑरेंजेस लगे हुए उस पे, ब्यूटीफुल ट्री. आपकी होप पूरी होती है, आप उस पे ढलान, थोड़ा धीरे धीरे आप चढ़ना शुरू करते हो पेड़ के ऊपर. आप उस पर्टिकुलर पेड़ तक पहुंच जाते हो. सबसे पहला काम, इतना जोरों की भूख लगी, इतनी जोरों की भूख लगी है, आपने 3 ऑरेंजेस प्लग किए, तो थक गए हो आप पूरा. आपने उन ऑरेंजेस को अपनी गोदी में रखा, पहला ऑरेंज उठाया, आपने भगवान का शुक्र किया, थैंक गॉड मुझे ऑरेंज तो मिला कुछ खाने को. आपने उसको पील करना शुरू किया, उसको छीलना स्टार्ट किया. क्लोज योर आइज. छीलना स्टार्ट किया. आपने पहला उसका स्लाइस उठाया. ओ माय गॉड, 4 घंटे से भूख नहीं लगी. पहला स्लाइस उठाया, आपने अपने माउथ के पास किया ऊपर, उसको जोर से पहले प्रेस कर दिया, और उसमें से 5-6 खट्टे खट्टे ड्रॉप्स आपकी जीभ पे ऊपर गिरे. आप कह रहे हो वाओ यार, हाँ ठंडक महसूस हुई इतनी गर्मी में. ओपन योर आइज. आई होप आपका जो सलाइवा था वो इंक्रीज हुआ. आपके पास ऑरेंज नहीं था, मैं आपको पिज्जा फील नहीं कराना चाहता था इन दी मॉर्निंग. पिज्जा नहीं चाहता था मैं फील कराऊं, क्योंकि हेल्दी चीजें हमने खानी है और हेल्दी ईटिंग के ऊपर ही हम काम करते हैं, तो हेल्दी चीजें आपको इमेजिन करानी. तो दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन. इस दुनिया में जो भी चीज बनी है, चाहे आप वंडर्स लगा लो, कोई भी आर्किटेक्चर लगा लो, सबसे पहले वो माइंड में, ब्रेन में इमेजिन हुई है, देन उसको पेन डाउन किया गया, देन उसको पेपर पेन से सारी चीजें जो है वो नोट डाउन की गई. सी द पावर ऑफ इमेजिनेशन. यू आर द ओन क्रिएटर ऑफ योर ओन थॉट्स, योर ओन पर्सनालिटी. जैसा आप दिखना चाहते हो ना, वो वही हो जो आप रोज करते हो. जैसा आप दिखना चाहते हो, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं एक लास्ट मूवमेंट पे आपको बताऊंगा चीज, कैसे उस चीज को आप चेंज कर सकते हो. उसके बाद एस स्टैंड्स फॉर स्लीप. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. स्लीप के अंदर एक चीज समझनी जरूरी है. 24 आवर्स का साइकिल होता है, जिसमें हमारा ब्रेन कभी नहीं सोता, हम सो जाते हैं, हमारी बॉडी सो जाती है. जो 16 घंटे हम काम करते हैं, 8 घंटे हमारा ब्रेन उस चीज को क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, क्योंकि हमारा बॉडी क्लॉक होता है. अब देखिए, जिस टाइम पे आप लंच करना आपने शुरू कर दिया 7-8 डेज, आपको उतने बजे ही भूख लगेगी, उतने बजे आपका ब्रेकफास्ट करने का दिल करेगा, तो आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है आपके माइंड क्लॉक के साथ साथ. होता क्या है कि बच्चा क्या करता है, रोज 16 घंटे जो करता है उसको 8 घंटे में प्रोसेस करना बड़ा इजी है. लेकिन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब आते हैं, वो इंस्टेंटली अपना जो दूसरा गियर डाला होता है ना, वो 5वां गियर डाल देता है. वो 16 घंटे की बजाय 20 घंटे काम कर रहा है, 20 घंटे वो सारी चीजें कर रहा है.
लेकिन उसको मिले कितने 4 घंटे, वो भी सडनली चेंज आया एकदम से, उसने सडनली अपने ब्रेन को सिग्नल दिया, सडनली अपने आप को सिग्नल दिया, ठीक है, अपनी बॉडी को दिया। तो होता क्या है, एग्जाम में सिली मिस्टेक्स होती हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह साइन थीटा, एंटायर क्वेश्चन इज रॉन्ग। सो आपके घर में 4 मेहमान आ जाएं, यू आर एबल टू मैनेज, बट बिना बताए अगर 20 मेहमान आ जाए तो क्या होगा, हबड़ा दबड़ी मच जाएगी, दड़ 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 इधर हबड़ा दबड़ी मच जाएगी, उसको मैनेज कैसे करोगे? जो रूटीन है आपका, जो बॉडी साइकिल है, वो डे 1 से लेकर एंड मूवमेंट तक टिल योर लाइफ, इट शुड बी फिक्स्ड, it should be very particular. Your sleeping time, your waking time, you should be organized for yourself first. ये आप अपने आप से पहले जस्टिस कीजिए, ऑर्गेनाइज करना अपने आप को, अपना उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, इट शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड। जो लोगों ने अचीव किया, दैट पीपल्स आर वेरी डिसिप्लिन्ड इन देयर लाइफ्स, राइट? सो स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर बच्चा अपना शुरू से ही वो टाइम रखता है तो उसके कभी भी एग्जामिनेशन में सिली मिस्टेक्स नहीं होते, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और नेक्स्ट इज एम स्टैंड्स फॉर निमोनिक्स, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज टू हेल्प द ब्रेन to organize and code and recall the important information in a day-to-day life, and this is the only science which is recommended by UNESCO. और किसी भी साइंस की, if you talk about abacus, if you talk about any of the thing, mnemonics is the science जिसमें जो यूनेस्को ने आर्टिकल दिए है 152 आर्टिकल, उसके ऊपर उन्होंने एक ही चीज कही है कि जो धरती के ऊपर रह रहा है एक इंसान, अगर वो निमोनिक्स से कुछ भी सीख लेगा, जिंदगी भर उसके वो माइंड में रहेगी वो चीज, निमोनिक्स जो है। दिस इज वन थिंग। और आर्टिकल नंबर 116 ए के अंदर ये मेंशन है, कंट्रीज लाइक इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, वियतनाम, यहाँ पे किस चीज को तवज्जो दी जाती है कि बच्चा कितने घंटे पढ़ रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, ये नहीं मैटर करता कितने घंटे पढ़ रहा है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो उसका टैग है कि बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन जो 2 घंटे पढ़ रहा है उसके ऊपर उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं यार इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। एक बच्चे ने 70 से 80% मार्क्स लाने हैं, वो नॉर्मली एक टीचर के पास जाता है और बोलता है कैसे आएंगे, तो टीचर उसको एक ही चीज बोलते हैं, मेजोरिटी केसेस के अंदर जो हमने देखा है वो ये होता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, बच्चा बोलता है 3 घंटे, आप इसको 6 घंटे कर दो, बट उसके अंदर आप कर क्या रहे हो, आपका तरीका क्या, ये मैटर करता है। एंड देन इज एसोसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगला प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ना, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। और एसोसिएशन के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं टू ऑल माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, व्हाट इज द मूवी, ये मूवी का नाम क्या है, काइंडली राइट इन योर चैट बॉक्स, फटाफट से काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द नेम इन द मूवी। ओके, दबंग, दबंग, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एंड व्हाट इज दिस मूवी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मूवी? दबंग, 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 भर गया पूरा, दबंग, 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 एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड मूवी जो भी मैंने रिफ्लेक्ट किया इमेज? बजरंगी भाईजान, यस, वंदना मैम, यस, स्वीटी गुप्ता मैम, चौधरी मैम, यस, एब्सोल्युटली राइट, बजरंगी भाईजान। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मूवी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मूवी, थर्ड वन? बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान, सो मेनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। बाहुबली, बिल्कुल ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मूवी? शाहरुख खान appears with the flag. What is the name of this movie? What is the name of this movie? Chuck the India, absolutely. Thank you so much to all the teachers with quick reply, with energetic reply. I'm so happy with to all of you, to all the synergy with energy. What is the name of this movie? I think this is one of the top and best movie which will change the life of the teacher and students both. The real transformational movie, that is Three Idiots, absolutely right. You see, once the images reflect, you are able to recall the movie. अगर शायद मैं 5 मिनट ये स्क्रीन स्टिल कर दूं ना, सभी अपनी अपनी मूवीज में पहुंच जाएंगे जो अपनी फेवरेट मूवी थी। So our brain only process videos, images, movies, and what is the power of brain? I'm just wanted to share with you. 450 करोड़ किताबें हमारा ब्रेन स्टोर कर सकता है, 450 करोड़ किताबें। एंड सेकंड फैक्ट इज 350 साल अगर कोई हाई डेफिनेशन पे मूवी चलती रहे, वो भी हमारा ब्रेन स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। इसीलिए इसको सुपर मेमोरी ऐसे नहीं बोला जाता, बिकॉज इन अवर डे टू डे लाइफ वी आर ओनली यूजिंग 1.5% ऑफ द ब्रेन। एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो अभी तक का ब्रेन है, दैट इज 7.19% उन्होंने ब्रेन यूज किया था। सी यू कैन सी दी वंडर्स उन्होंने जो किए हैं, 11 थ्योरीज दी हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑल दीज थिंग्स, द जीनियस माइंडसेट। सो एसोसिएशन से क्या होता है, अगर आप ये देख रहे हैं, कपड़े इसकी एसोसिएशन अलमीरा के साथ है, यूटेंसिल्स इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, किचन के साथ है, इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, कीज की एसोसिएशन
किसी के साथ नहीं होती। अक्सर हम चाबियां और पेन रख के भूल जाते हैं, कहाँ रख दिया पेन मैंने, कहाँ रख दी चाबियां, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी एसोसिएशन नहीं है। कभी घर में किसी को सुना कि कोई प्याज टमाटर रख के भूल गया? नहीं, क्योंकि उसको रखने का जो एक प्लेस है दैट इज फिक्स्ड। या तो वो एक रैक में रखी होंगी या वो फ्रिज में रखी होंगी, दैट इज फिक्स्ड। दैट इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। अब मैं क्या करने वाला हूं आप सभी से, जितने मैंने अभी प्रिंसिपल्स बताए हैं, साइंस ऑफ बिलीफ को मैं साइड पे रखता हुआ, जितने मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं, प्रिंसिपल्स बताए हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स मैं अभी अप्लाई करने वाला हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसको आपने याद करना हो, या आप याद करने की भी कोशिश कीजिए। 3 कंडीशंस में याद करना है, 1 से 15 तक फॉरवर्ड ऑर्डर में, 15 से 1 तक रिवर्स ऑर्डर में, और बीच में से कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। मतलब 10th पे क्या है, 8th पे क्या है, 14th पे क्या है, तो आपको पता हो। तो तीनों कंडीशंस को फुलफिल करते हुए अगर आप इस चीज को याद करें तो कितना वक्त लगेगा आपको इसको चीज को याद करने के लिए? हाउ मच टाइम? कितना वक्त लगेगा? आई वॉन्ट योर, आई रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मेमोराइज दिस फॉरवर्ड ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, और बीच में कहीं से भी पूछ लिया जाएगा। आई टेस्ट उल्टा हो गया ना, आगे वी यूज्ड टू टेक टेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, so now all the respected teachers are there in sitting. So 1 hour, Priyanka Sharma ma'am said 1 hour, by god. Okay, any other? Thank you Priyanka ma'am. Any other? आप डरिए मत, जो आंसर टाइप करेगा कम से कम टाइम भी लिखेगा, मैं उसका टेस्ट नहीं लेने वाला। आई एम वेरी क्लियर, डोंट बी स्केयर। 30 minutes, 15 to 20 minutes, okay, half an hour, 15 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, okay, 10 minutes, 30 minutes, majority 30 minutes answer है, 30 minutes, okay, thank you so much, 30 minutes, half an hour, okay, it's fine to all of you, thank you so much for your quick replies. अब मैं आपको ये चीज याद कराने वाला हूं 20 सेकेंड्स में। कितनी देर में? 20 सेकेंड्स में। तो आई थिंक आप सबसे पहले आपका जो परसेप्शन बना मुझे लेकर ये बना कि सर फेंक रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं, गप मार रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें विश्वास नहीं ना, साइंस ऑफ बिलीफ क्या कहता है? रॉजर बनिस्टर के साथ क्या हुआ था, जब दुनिया की सारी रेसेस 60 सेकंड्स में जो कंप्लीट करनी थी, ठीक है, उससे हार्ट स्पेशलिस्ट ने भी बोल दिया कि ये 59 सेकंड में हो नहीं सकती एज पर कार्डियक अरेंजमेंट इन दी बॉडी। तो उन्होंने वो रेस 59 सेकंड में कंप्लीट की, क्योंकि उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट नहीं करी, उन्होंने अपने आप पे विश्वास रखा। तो मैं 20 सेकंड में आपको ये चीज अभी याद कराने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको पावर ऑफ ब्रेन साइंस बताने वाला हूं, ठीक है, कि ये जो हमने प्रिंसिपल किए हैं, ठीक है ना, तो हम देखना भी तो चाहते हैं ना इन प्रिंसिपल्स का क्या फायदा है, हम कैसे अप्लाई होंगे और क्या इसका आउटकम रहेगा। क्या 30 मिनट की चीजें ये 20 सेकंड में करा सकता है? तभी तो हमारे लिए फायदेमंद होगा आगे इसको डिलीवर करना, लर्न कराना बच्चों को। तो 3 शर्तें हैं मेरी। नंबर 1, जहां पर भी बैठो बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ जाओ। आई नीड योर, क्योंकि 20 सेकंड इज अ वेरी लेस टाइम, तो आई वांट प्रॉपर अटेंशन टू ऑल ऑफ यू, प्रॉपर अटेंशन। नंबर 1। सेकंड चीज जो है, जो स्क्रीन पे होगा आपने उसको ध्यान से देखना है, जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूं उसको अच्छे से देखना है, ठीक है। और तीसरी चीज जो मैं बोलूंगा ना, आपने देखने के साथ साथ अच्छे से सुनना है, क्योंकि 20 सेकंड का बड़ा कम टाइम है। जहां पे भी आप मिस किया आपने, आप जो है वो सारा जो चेन है वो सारी चीजें ब्रेक हो जाएंगी। तो तीनों चीजें। और मेरा चौथा आपसे प्रॉमिस ये है, चौथा प्रॉमिस जो मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, ये जो 15 चीजें मैं 20 सेकंड में करा रहा हूँ, ये जिंदगी भर जब तक आप इस दुनिया पे हैं, भगवान करे लिव लॉन्ग लाइफ, ट्रांसफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ माइंड्स, ठीक है, जब तक आप इस धरती पे ना, ये चीज आपको 15 की 15 कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये मेरा आपसे चौथा कमिटमेंट है 20 सेकंड के अंदर, राइट। तो मैं इसको भी स्टार्ट करता हूं। 1 2 3 स्टार्ट। सबसे पहले ऊपर देखिए कि घड़ी है, ठीक है, घड़ी को तोड़ करके रेड कलर की एक कार बाहर आई, कार आके सामने बिल्डिंग पे लगी। वो बिल्डिंग स्पॉन्ज की बनी थी, स्पॉन्ज गिरना शुरू हो गए नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या है, डॉग है, डॉग क्या कर रहा है, अपना पिज्जा लेके भाग रहा है। उसके सामने एक बड़ा ब्यूटीफुल सा सोफा है, राइट, और वो डायमंड का बना हुआ, उसके ऊपर एलिफेंट महाराज जी बैठे आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल बकेट है, बकेट के बीच में हार्ट्स रखे हुए हैं। उसके ऊपर क्या है, एक बलून है, बहुत ब्यूटीफुल बलून। उसके ऊपर क्या है, एक पैरेट है, पैरेट महाराज जी क्या कर रहे हैं, बुक बैठ के पढ़ रहे हैं। द गेम इज ओवर। सबसे पहली चीज क्या थी, फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, सबसे पहली चीज क्या थी? व्हाट इज ऑन नंबर 1? व्हाट इज ऑन नंबर 1?
क्लॉक, एब्सोल्युटली फाइन। दूसरे नंबर पे क्या थी चीज? कार, ब्यूटीफुल। तीसरे नंबर पे क्या थी चीज? व्हाट इज ऑन नंबर थर्ड? बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली बिल्डिंग, बिल्डिंग ऑन नंबर 3। बिल्डिंग के बाद क्या था? व्हाट इज आफ्टर बिल्डिंग? यस एब्सोल्युटली फाइन, डॉग। और डॉग के बाद क्या था? व्हाट इज आफ्टर डॉग? पिज्जा, ब्यूटीफुली, बहुत बढ़िया। एंड आफ्टर पिज्जा क्या था? आफ्टर पिज्जा आपने क्या देखा? सोफा, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, सोफा देखा। और सोफे के बाद आपने क्या देखा? व्हाट इज आफ्टर सोफा? व्हाट इज आफ्टर डायमंड? बिल्कुल ठीक है, डायमंड का बना था वो, बिल्कुल। और उसके ऊपर कौन बैठा था? किसको आपने देखा उसके ऊपर बैठे हुए? एलिफेंट को बैठे हुए देखा, बिल्कुल ठीक। और उसके हाथ में क्या था एलिफेंट के? व्हाट इज आफ्टर एलिफेंट? एलिफेंट के हाथ में क्या था? आइसक्रीम, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, आइसक्रीम। उसके बाद क्या था? व्हाट इज आफ्टर दैट? व्हाट इज आफ्टर दैट? बकेट, बिल्कुल ठीक है। और बकेट के बाद क्या था? बकेट के बीच में क्या था? बिल्कुल ठीक है, हार्ट से बकेट। और उसके बाद क्या था? व्हाट इज आफ्टर दैट? व्हाट इज आफ्टर दैट? बलून, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बलून के बाद क्या था? व्हाट इज आफ्टर बलून? बलून के बाद था पैरेट, बहुत बढ़िया। और पैरेट क्या कर रहा था? व्हाट इज ऑन द लास्ट? यस, बुक पढ़ रहा था। मैं आपको रैंडमली पूछता हूँ, आप मुझे एक चीज बताइए, बिल्डिंग के बाद क्या देखा आपने? व्हाट इज आफ्टर बिल्डिंग? व्हाट इज आफ्टर बिल्डिंग? स्पॉन्ज, ब्यूटीफुल आंसर, थैंक यू सो मच, आपने स्पॉन्ज को देखा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बलून से पहले क्या है? व्हाट इज बिफोर बलून? Heart. बलून से पहले क्या है? हार्ट्स, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। और व्हाट इज आफ्टर कार? व्हाट इज आफ्टर कार? कार के Building. बाद? बिल्कुल Building. ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां बजाना चाहता हूँ। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू बिकॉज वी आर एबल टू डू इट इन 20 सेकेंड्स। एंड हमने इसको याद करने के लिए याद नहीं किया, हमें अपने आप पे विश्वास था। 20 सेकेंड्स में हमने वो 30 मिनट का काम किया। सिंपली क्या किया, अब जब भी आप किसी डॉग को देखोगे ना, अगर आपके घर पे भी होगा तो आपके दिमाग में पिज्जा आएगा। किसी एलिफेंट को देखोगे अगर रास्ते पे जाते हैं तो आइसक्रीम नजर आएगी। किसी बिल्डिंग को देखोगे तो स्पॉन्ज नजर आएगा। अगर अपने घर की घड़ी देखोगे तो आपको कार नजर आएगी। और अगर किसी पैरेट को देखोगे तो बुक नजर आएगी। तो दिस इज द मैजिक ऑफ निमोनिक्स एंड वी ऑलरेडी प्रिपेयर एंटायर करिकुलम। ठीक है, देयर इज अ स्पेशल ट्रेनिंग इन द टीचर टू द टीचर्स आल्सो। से फॉर एग्जांपल साइंस के अलग टीचर्स, हिस्ट्री के अलग, कि कैसे उन सब्जेक्ट्स को आप बड़े से बड़े मुश्किल से मुश्किल, बिकॉज आईएएस की कोचिंग मैं खुद करता हूँ। जो यंग एस्पायरेंट्स आईएएस के होते हैं, ठीक है, बिफोर एग्जामिनेशन, जो उनको, क्योंकि जीके इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसको आप रट नहीं सकते सारी जिंदगी। ठीक है, तो जीके इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, इनकम टैक्स कमिश्नर और लॉयर्स के जो क्लॉजेज होते हैं, ठीक है, पैन इंडिया में उनको कोचिंग देता हूँ। ठीक है, जिसमें हम उनको मेमोराइज, जो 4 घंटे की चीज है वो कैसे अपनी मॉर्निंग से आसानी से कर सको। दिस इज ऑल अबाउट दी थिंग, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, बिलीव सिस्टम, जिसको सबसे स्ट्रॉन्ग करना। मैं हमेशा बोलता हूँ 4 T's दैट मेक फैमिलीज। 4 T से आपके परिवार बनते हैं, बड़े से बड़ा परिवार बनता है। वक्त से, नंबर 1 इज, फर्स्ट T इज टाइम, सेकेंड इज टॉलरेंस, थर्ड वन इज टच, फोर्थ वन इज ट्रस्ट। ये 4 T, टाइम, टॉलरेंस, टच एंड ट्रस्ट, ये 4 चीजों से ये चीजें जो है वो बनती हैं। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन इन माय टर्म्स, being qualified does not mean educated, very very clear. Rather, attitude of learning, executing and succeeding reflects the real education. That is the real education, जो आपके किरदार में झलक आए। कहते हैं ना, डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, इल्म वही जो किरदार में झलके, जो आपकी पर्सनालिटी में झलकता है, उसको हम बोलते हैं। और आपका जो एनवायरनमेंट है, इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि हमें डेली के डेली, कैन यू बिलीव, मेरे को आई थिंक 8 साल से ज्यादा हो गए, मैं न्यूज चैनल आज तक मैंने कोई देखा नहीं। ठीक है, और मुझे आज भी अगर आप पूछेंगे कि कोरोना पे क्या अपडेट है, मुझे नहीं पता होगा। इवन आई एम सिटिंग इन जलंधर, मुझे जलंधर का डेटा नहीं पता, टोटल कितने मरीज हो गए हैं कोरोना के, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। इतना पता है कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम रखते हैं। ठीक है, और क्यों नहीं देखा न्यूज़ चैनल, क्यों टीवीज नहीं देखे? बिकॉज इन सब ने हमारे ब्रेन को इतना ब्लॉक कर रखा है, बिलीव मी। हमें आज इतना डर है किसी चीज को खोने का। वो किस चीज का डर है? वो जिंदगी। ठीक है, जिंदगी दी है वो ऊपर वाले ने दी है, वो गॉड ने दी है। और जब उसने लेनी है वो भी ऊपर वाले ने लेनी है, वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ। बचपन में एक छोटा सा क्या था, मैंने एक फ्रेंड से कैप ली अपने दोस्त से पहनने के लिए, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो कैप, तो मैंने उससे कैप ली। पर ही सेड कि मैं तेरे से 2 दिन बाद वापस लूंगा, तो उसको 2 दिन एंजॉय कर।
तो वो कैप मैंने अच्छे से पहनी, उसको एंजॉय किया। जैसे ही सेकंड डे खत्म हुआ ना, तीसरा दिन स्टार्ट हुआ, तो मेरे दिमाग में सबसे बड़ा एक ही डर था यार, कि यार वो कैप तो पड़ी हुई है, दिल कर रहा था कि वो कभी मेरे से वापस ना जाए कैप, दिल पहनने का भी कर रहा था, लेकिन मैं उसको पहन नहीं पा रहा था। क्यों नहीं पहन पा रहा था? क्योंकि तीसरे दिन मेरे फ्रेंड ने आके उस कैप को परमानेंटली मेरे पास से ले जाना था। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइफ बहुत अच्छी है, भगवान ने जीने के लिए दी है, इट्स फुल ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। अगर कहते हैं ना, एक छोटे से गिलास के अंदर अगर आपने लाल रंग डाल दिया, ठीक है, वो गिलास के अंदर लाल रंग नजर आ रहा है, ठीक है, अब आप उस लाल रंग को लेके बैठे हो, यार मैं पानी नहीं पी सकता, उसमें लाल रंग आ रहा है, तो क्या कर सकते हो आप उस लाल रंग को दूर करने के लिए? आप रोज अपना पॉजिटिविटी का पानी जो है उसमें डालते रहिए, और बिलीव मी 10वें या 15वें दिन क्या होगा, वो लाल रंग परमानेंटली उस पानी से गायब हो जाएगा। तो डर के कारण अगर आप ये जिंदगी नहीं जी पा रहे हो तो ये अनफॉर्चुनेट है। एंजॉय योर लाइफ विद फुल प्रिकॉशंस, विद फुल एवरीथिंग, ठीक है। आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, यू ऑल आर गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, ठीक है। तो इफ अच्छा प्रैक्टिस करो, अपनी एक पूरी एक रिचुअल शीट बनाओ। जैसे मैंने बोला कि हैबिट्स क्या होती हैं, आपकी हैबिट्स आप डिसाइड करती हैं जो आज आप हो ना, अपनी आदतों की वजह से। और हम जो आदतें बुरी होती हैं ना, उसको हमें अडॉप्ट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, वो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। अगर हम सुबह ना उठें तो लेट उठ रहे हैं, तो वो एक हैबिट है। अगर हम कुछ अच्छी किताब नहीं पढ़ रहे, रीडिंग नहीं कर रहे, तो वो भी एक हैबिट है, ठीक है। तो बुरी आदतों को अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छी आदतों के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने रिचुअल्स की बात करी आपसे, जीनियस जो बनता है, जीनियस इज नॉट ऑल अबाउट जेनेटिक्स, इट्स ऑल अबाउट योर हैबिट्स एंड रिचुअल्स। अपनी एक रिचुअल शीट बनाओ, एक गोल बनाओ अपना, 30 डेज का गोल बनाओ, और अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखो, सबसे टॉप पे लिखो जो आप बनना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि मैं 30 दिन बाद मैं खुद कैसा दिखूं, मैं स्लिम दिखूं, मेरी वाणी में इतनी मिठास हो, मेरे एटीट्यूड में इतना, एटीट्यूड डिसाइड्स योर सक्सेस, राइट। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, सारी चीजें आप उसमें पॉइंटर्स लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे, 15-20 चीजें, जो गुण, जो एट्रीब्यूट्स आप अपने आप में चाहते हो, और डेट वाइज आप उसको आगे स्प्लिट कर दो। जैसे उसमें, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 30 तक कर दो। और डेली, कहते जज कौन होता है, जज कोई बाहर का नहीं होता, जज आपका मन होता है। एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो टू स्लीप, आपका मन बता देता है कि आज आपने कौन सा काम है जो अच्छा नहीं किया, जो क्या आपसे मिस्टेक हुई। और जब आप एंड ऑफ द डे बेड पे जाओगे, तो आप अपनी अटेंडेंस को मार्क करो कि क्या आपने बुक रीडिंग की, क्या आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, मेडिटेशन की, क्या आपने हेल्दी ईटिंग आज रखी है। बिकॉज जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसे हम बोलते हैं एज यू सो शैल यू रीप। देयर इज अ ब्यूटीफुल सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन अवर माइंड एंड अवर बॉडी, ठीक है। अगर हम अपने माइंड को क्लीन करना चाहते हैं अपनी बॉडी के लिए, ठीक है, फ्रूट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई यूज टू टेक ओनली 1 मील इन अ डे, राइट। और 7 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता, और फ्रूट्स और सैलड मेरी डाइट का पार्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये माइंड एंड बॉडी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये वही चीज है, ठीक है। गाड़ी जैसी बाहर से है वैसे अंदर से भी होनी चाहिए, तब अच्छी लगती है, जब आप चलाने में भी उसको मजा आता है। यू आर द ड्राइवर्स ऑफ योर ओन कार, और उसके ड्राइवर्स आप कब और ज्यादा ओनरशिप के साथ आओगे, जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है। और अच्छा सोचिए, और जब आप सुबह उठते हैं, पहले 15 सेकंड डिसाइड कर देते हैं आपका आज का दिन कैसा रहेगा। अगर आप सुबह उठते ही कंप्लेनिंग नेचर से उठते हैं, खिजापन है, मतलब आप थोड़ा रिग्रेट है, कंप्लेनिंग है, तो यू सी दैट रिफ्लेक्शन, वो एंटायर डे आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो सारी आपको सफर करेगी, ठीक है। तो द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल हु यू आर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आप जिंदा है, जिंदा तो नजर आना चाहिए आपको, ठीक है। एंजॉय करिए लाइफ विद फुल पॉजिटिविटी, विद फुल स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल थॉट्स, बिकॉज जिंदगी जीने के लिए मिली है, ठीक है। इस जिंदगी को एंजॉय कीजिए। तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर राउंड लेना चाहूंगा, ईच एंड एवरी टीचर को, टीचर से पूछना चाहूंगा, अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है रिलेटेड टू थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम, स्पिरिचुअलिटी, any of the above, brain science, I would love to answer your all the questions. So any questions in your mind, anything you would like to ask? Hands if they want to ask something. Yeah, please. We just everyone is happy. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सवाल पूछेंगे। कहते हैं ना, एक तो I think all are muted. I will unmute them. Okay. Hello, Sachin sir.
Okay, okay, right. Hello, sir. Hello, Very good morning. my voice is audible Good to morning, you? sir. My Yeah, voice, your voice is very much audible, sir. Thank you so much. Please, sir, raise your question. sir, actually, my question is related with all that in this online era, teachers' burden have increased if we compare to the physical class teaching, right? Right. Their burden have increased and new technologies they have to learn, and they have extra burden, the things which they have never did in the past they have to learn, and also they have to make the students to learn. So True. how they can manage with all these things, and they can suppress their stress in today's Right. situation, in today's COVID-19 situation? Right. Right, sir. Thank you. Is this question complete, sir? Shall I Yeah, answer? yes, sir, completed. Yeah. Thank you so much, sir. First of all, to raise this question, and I am going to answer this question, sir. Very important. First of all, you need to uh, love your work. Number one thing, irrespective all this situation, you need to love your work. And second thing, I just wanted to quote you why, if I'm talking about the case history of Kodak, the case history of Nokia, these are the biggest example of success also or failure also. If you pick the failure, if you pick the failure, what is that? फेलियर क्या था कि उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ जो है वो चेंज नहीं किया. हम आपको बचपन की एग्जांपल देता हूँ. वन ऑफ माय कजन, ही इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन. जब मैं उसके साथ क्रिकेट खेलता था तो वो हमेशा मुझे हराता था. टेबल टेनिस खेलता था, वो हमेशा मुझे हराता था. 50-100 बार हारने के बाद मैंने बीच बीच में सीखना शुरू किया. तो जब मैं हारता था तो मैं उससे लर्न करता था. जब मैं जीतता था तो मेरी ईगो जो है वो एक लेवल पे डिवेलप होती थी कि मैं जीत गया हूँ. So today era is the learning, right? Love your work all the time. If जो चीजें आपकी आज के टाइम पे फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड कौन कौन सी चीजें? हमारा माइंडसेट, हमारा सर्कल. What is our net worth? See, as simple as that. The size of your pocket is what you manifest in your mind. The size of your pocket is what you manifest in your mind. और आज इस टफ सिचुएशन में हो क्या गया है, उल्टा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है. बिलीव मी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है. पहले क्या होता था कि आप कई कॉल्स को अनआंसर कर देते थे. ठीक है, आप घर आते थे तो कॉल सेल आपने स्विच ऑफ कर दिया. लेकिन आज यू हैव टू आंसर, यू हैव टू आंसर. चाहे आप ऑनलाइन सेशन दे रहे हो, पेरेंट्स आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं. B2C से आप B2B भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, जिसमें पेरेंट्स आर ऑल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर, जिसमें वो ऑब्जर्व करते हैं कि आप सेशन कैसा दे रहे हो. और जो सेशन आपका फिक्स्ड है ना सर, जो पानी है आपका हमारा, उसमें अगर लाल रंग के 4 ड्रॉप्स आ गए हैं ना, अगर वो पानी को हम देखते रहेंगे वो रेड रहेगा. अगर हम रोज हाफ गिलास वाटर उसमें ऐड कर देंगे, एक दिन वो रेडनेस खत्म हो जाएगी, प्योर वाटर हो जाएगा. माय पर्पस ऑफ टेलिंग दिस थिंग, डेली आप अपने लेक्चर में अगर कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी ऐड करना शुरू करेंगे, अपने काम से प्यार करेंगे. और सीरियसली सर, मेरा दिल पता क्या कर रहा है कि मैं शाम तक ये सेशन ना छोड़ू. बिलीव मी, 6 बजे तक 7 बजे तक मैं 5-5 घंटे 6-6 घंटे बोलने की कैपेसिटी रखता हूँ, 7-7 घंटे बोलने की कैपेसिटी रखता हूँ. Quite good, sir. We can also enjoy our session till evening. तो मजा किस में आता है? आपके आपके कहते हैं ना, आपका जो हाव भाव है वो किससे नजर आता है? आपकी आंखों से और आपके चेहरे से. ठीक है, तो if you are passionate, if you are enjoying your work on a daily basis ना, तो आपका चेहरा हमेशा खुश रहेगा. बोलो, आपके बच्चा वो आपका अपना बच्चा है, आपका अपना स्टूडेंट है. ठीक है, और आपका जो एक डॉक्टर का रोल और टीचर का रोल ऐसा होता है, कंपैशनेट होता है, जिसमें दया है, जिसमें मर्सी है. आप सोचिए कि जो भगवान ने आपको कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दी और जो रोल दिया है ना सर, आई एम ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ टीचर. मैं हमेशा विद ऑल द ग्रेटिट्यूड उनका थैंक्स करता हूँ कि जो मैं आज हूँ वो आप सबकी बदौलत हूँ, वो टीचर्स की बदौलत हूँ. तो विद ऑल द ग्रेटिट्यूड, ठीक है, जो आपको रोल दिया भगवान ने उसका शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि आप जिंदगियां ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. ये जिंदगियां, कोई मैकेनिक देख लीजिए, कोई और प्रोफेशन देख लीजिए, जितना रिस्पेक्ट टीचिंग के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है, बिकॉज आपको इस धरती पे भेजा गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ताकि आप जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर पाए.
So wish you all the best for the transforming lives ahead, right? Any other question? I think one more question, Ma'am, if you can take up any question on behalf of all the teachers. Vanna ma'am, Neha Chaudhary ma'am has asked one of the questions in the chat box. Okay. Sir, there is a Just- question in the chat box. Yes. We would love if you can answer that. Yeah, There's a I'm- question like, as we seen after getting board results, so many students attempt suicide after getting low marks due to societal pressure. So how can we motivate students to stop this? Okay, very valid and very good question in today's situation. Not in today's situation because इस टाइम पे हम सिर्फ मीडिया देख पा रहे हैं, तो हमें शायद फैक्ट्स फिगर्स पहले हमारे पास देखने का वक्त नहीं होता, तब हमें और ज्यादा पॉपअप लगती हैं. सबसे इम्पोर्टेंट है मैम, देखिए मैंने जैसे बताया कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझना, या जब आप कोई चीज डिलीवर करते हो, क्या आपकी डिलीवरी के अंदर, जैसे से फॉर एग्जांपल एज ए टीचर मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई यूज्ड टू टेक अ लेक्चर, से फॉर एग्जांपल अगर वो 1 आवर का लेक्चर है ना, तो उस 1 आवर के लेक्चर में सिर्फ डोंट ऑलवेज टॉक योर टीच योर चाइल्ड, टॉक टू योर चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिना बात किए स्ट्रेस आ रहा, आज माता पिता बच्चे से बात नहीं करते थे, वक्त नहीं था उनके पास, ठीक है. ये कोरोना नहीं है, ये करुणा है, ये परमात्मा की करुणा है जो उसने हमें आज की लाइफ में दी है, ठीक है. और मैं आपको बताता हूँ, जब आप कोई भी सेशन प्लान करते हो, 40 मिनट्स का है, 1 आवर का सेशन है, तो अगर उसमें जो टॉपिक आपने पढ़ाना होता है, आप सोचिए कि उस टॉपिक में आप क्या ऐसी स्टोरी डाल सकते हो, मोटिवेशनल चीजें डाल सकते हो जो उसको उसकी असल जिंदगी की तरफ लेकर जाएं, उसको उसकी असलियत इल्यूजन से बाहर लेके आए. तो जब आप, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि यू आर जस्ट डिलीवरिंग, वी आर जस्ट डिलीवरिंग द लेक्चर, द टॉपिक इज ऑलरेडी फिक्स्ड, हम उसको चेंज नहीं करते, वी आर डिलीवरिंग लाइक एनीथिंग. तो बच्चे को मॉरल सपोर्ट किससे, बच्चा किससे अपने आप को कंपेयर करता है, परसेंटेज से कंपेयर करता है. अब मानोगे 94% बच्चे के नंबर आगे पीछे. सो मैनी काउंसलिंग, मेरे पास हजारों फोन आए काउंसलिंग्स के कि मैंने एक सेशन किया पीछे जिसमें 936 बच्चे थे, ठीक है. तो दे वांट टू गो फॉर रीवैल्यूएशन. मैंने पूछा क्यों रीवैल्यूएशन करना चाहते हो अपने पेपर्स को, कहते 8 नंबर कम है. किससे कम है आपके 8 नंबर, वो किससे कम है, वो आपके कॉम्पिटिटर. हु इज द रियल कॉम्पिटिटर? द कॉम्पिटिटर, द कंपटीशन इज बिटवीन यू, योर सोल, योर डेली इंप्रूवमेंट एंड यू. और वो 8 नंबर क्यों कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है? अपने फ्रेंड से कंपेयर कर रहा है. क्योंकि हम 21 ईयर तक बच्चे को क्या सिखाते हैं, अपना टिफिन खत्म करके आना, आपके मार्क्स कितने, आपके फ्रेंड के मार्क्स कितने हैं. तो देयर इज पेरेंटिंग आल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल. जो आप क्लास ले रहे हो ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम एक छोटा सा, अगर आप पेरेंटिंग 20-25 मिनट की कर पाओ, उन पेरेंट्स को बता पाओ, उन पेरेंट्स को इंकलकेट कर पाओ, उनको सपोर्ट कर पाओ ना, उनके चेहरे पे खुशी लेके आ पाओ कि आपका बच्चा जीनियस है. इफ यू टॉक अबाउट दी अब्राहम लिंकन लेटर, ठीक है, जो उन्होंने जो लेटर लिखी थी, जब वो स्कूल से उनको निकाल दिया गया था, उनके मदर ने वो ट्रंक में संभाल के रखी. क्यों संभाल के रखी? क्योंकि वो उनको बताना नहीं चाहते थे कि यार आपका बच्चा जो है वो इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटीज नहीं है. आप देखिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने बिकॉज वी आर बाय बॉर्न जीनियस. कहते ना, एक बानी में लाइन आती है, भीखा भूखा को नहीं सबकी गठड़ी लाल, ग्रह खोले नहीं ताने ताकते वे कंगाल. गठड़ी सभी की लाल दी है परमात्मा ने. जिसने उसको पहचान कर ली है ना, जिसने उसकी पहचान कर ली है, वो जीनियस कैटेगरी में आ गया. जिसने पहचान नहीं की है वो बिल्कुल नीचे आ गया. यू हैव टू रीड. हम रीडिंग में क्या कहते हैं बच्चों को, साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो. कभी हम ये बोलते हैं बेटा रोज आप 10 मिनट की कोई पॉजिटिव बुक पढ़ो, किसी की केस स्टडी पढ़ो, किसी की बायोग्राफी पढ़ो. बच्चों को पता ही नहीं होती मैम रियल लाइफ. 21 साल तक एक ही प्रैक्टिस की है आपने, 22वें साल हम जब बच्चे को बोलते हैं आफ्टर कॉलेज, बेटा दूसरों की मदद करना, कहाँ से वो मदद करेगा? उसकी सॉफ्टवेयर जो उसका दिमाग का हमने पहले से ही करप्ट कर रखा है, वो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता. लैक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ऑल. सो यू हैव टू इनकलकेट मोटिवेशन in your day-to-day lectures. You have to understand that child, because जैसे मैंने बोला compassion and mercy आपका फील्ड है. तो जब आप उसके अंदर मोटिवेशन लेके आएंगे ना सर, देखिए आपको पढ़ाने में इतना मजा आएगा और पढ़ने वाले की जिंदगी जो है ना सर बदल जाएगी. क्योंकि आज के टाइम पे फाइनेंशियल सपोर्ट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है, क्योंकि प्रायोरिटी में यही है कि यार 2 वक्त की रोटी मिल जाए, और थैंक्स टू दैट ऑलमाइटी जो वो दे रहा है. और सबसे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दैट इज कॉल्ड मॉरल सपोर्ट. आप किसी की पीठ पे जाके हाथ रख दो, उसको बोलो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, जिंदगी की हर चीज तो अचीव कर सकता है.
सर बिलीव मी, वो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अचीव ना कर पाए वो चीज। आई एम श्योर आउट ऑफ दैट। आई एम अ चाइल्ड ऑफ डिसलेक्सिया इन माई चाइल्डहुड। देर आर सो मेनी चाइल्ड इन डिसलेक्सिया जो विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हमने ट्रांसफॉर्म किए। जो 1200 बच्चों की एग्जांपल दे रहा हूँ ना सर, वो 40% ज्यादा मार्क्स नहीं लाते थे, और आज अभी जैसे मैंने तानिश को बताया 13 साल की उम्र में इज द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर। हजारों बच्चे हैं मैम, ही इज आउट ऑफ वन जीनियस। तो आप देखिए, आप तराशना है, आपका काम है उसको टीचिंग के दौरान तराशना। ऐसे तराशिए कि जब कभी वो आपसे मिले ना, तो आपको मतलब भीड़ में खड़ा होकर हक करे, आपके पैर छुए और बोले सर आपने मेरी जिंदगी को बदला था। और आप बोलो कब बदला था, मुझे तो याद भी नहीं, क्योंकि आपने जो वट एवर यू आर पुटिंग ना, उसको यहाँ मत डालिएगा, क्योंकि वो ईगो को पार्ट ले लेती है। एंड ईगो ऑलवेज रेज बाय द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन योर डे टू डे लाइफ। So any other question? I hope I am able to answer your question. Yes, sir, definitely. Hello. Yes. Yeah. Vandana, there are 2 more questions. Hello. Yes, ma'am. Vandana ma'am. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Speak, sir. Yes. Sachin sir, I want to ask one question. Yeah, please. I'm Subhash Tevatia. Okay. I'm Subhash Tevatia, PET. I want to ask one question especially regarding the लोग हमें कहते हैं कि we are the only PET, but we are the human engineer. True. सब लोग बोलते हैं कि भाई ये एक PET है, लेकिन ओरिजिनली वी आर द ह्यूमन इंजीनियर। जो आप बात कर रहे हैं मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि भाई आज सिंगल फैमिली, डबल फैमिली, जॉइंट फैमिली, तो उन्हीं से रिगार्डिंग सारी चीजें एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि हम उन्हें वो चीज दे नहीं रहे कि वो ग्रुप में आ जाए। ये सारी चीजें हमें इंटरनली पता होती है, लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते। जी सर। एब्सोल्युटली। और सर मैं इसको आंसर ऐसा करना चाहूंगा, जी। हमारे मन में ना एक बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि वट एवर सैलरी आई एम गेटिंग, माई फर्स्ट सैलरी वॉज 800 रुपी इन द ईयर ऑफ 2004, एंड व्हेन आई लेफ्ट एज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, मेरी एक RM एज इन एडुकॉम, my salary was 1,24,000 when I left the organizations and I wanted to start my own venture 7 years back. And अब होता क्या है कि आप एक चीज समझिएगा साइकोलॉजी के अंदर, आज मेरी सैलरी 100 की बजाय 50 रुपए हो गई, ठीक है। वो 50 रुपए कैसे हुई? आप एक चीज को इस पूरी इकोनॉमी को अगर समझिए, क्योंकि मैनेजमेंट का एक अलग रोल है, ठीक है, उनका एक फ्लोट, और मतलब हर किसी का एक साइकिल डिस्टर्ब हो गया। अगर मुझे 50 मिल रहा है, लेकिन 50 लेने के बाद भी मैं फिक्र कर रहा हूं, शुक्र नहीं कर रहा, बिकॉज इन माई एटीट्यूड फिक्र है, शुक्र मेरे एटीट्यूड में नहीं है, ग्रेटिट्यूड तो नहीं है। तो मैं ऑलवेज कंप्लेनिंग रहेगी, यार मैं एक्स्ट्रा क्यों करूं, मैं एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाऊं, मैं 15 मिनट ज्यादा जूम लेक्चर पे क्यों जाऊं, मैं एक्स्ट्रा बुक क्यों पढूं। अरे भाई, मेरी हाथ जोड़ के सभी से ये प्रार्थना है कि जो आप पढ़ोगे, ठीक है, आई इन्वेस्टेड ऑन माई सेल्फ मोर देन 24 lakhs इन सर्टन सर्टिफिकेशन, इन सर्टन एग्जामिनेशन। और आज भी अगर छोटे बच्चा भी कुछ सिखाता था, मैं नीचे उसके पैर पकड़ के छू के नीचे बैठ जाता हूँ उसकी गोदी में, भैया मुझे कुछ सिखाओ। मेरा पर्पस कहने का ये है कि अगर आप कुछ भी सीख रहे हो ना सर रोज, अब किसी के लिए हम लोग नहीं सीख रहे कि यार मुझे मैनेजमेंट के लिए सीखना है, या उन्होंने मेरे से लेक्चर की डिमांड की, एक्स्ट्रा आप ये दे दो। तो यार वो लेक्चर, वो चीज आपकी जिंदगी भर आपका एसेट है। मैं जब PPTs दिखाता हूँ ना, आई लव टू शेयर दैट माई PPT टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मुझे पता है यार ये PPT मैं 50, 100, 1000 लोगों को बांट दूंगा, लेकिन मेरे को कोई कॉपी नहीं कर सकता, आप लोगों को कोई कॉपी नहीं कर सकता। Who you are, you are the genius by born, individual, inborn talent आपके अंदर, तो कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता। इनसिक्योरिटी हमारे अंदर, नंबर 1। नंबर 2, हमें जो है पेरेंट्स को रोक टोक ठोक से दूर रखना, कि रोकना टोकना ठोकना वो जो है वो कॉमन है, ठीक है। पेरेंटिंग जब आप बच्चों की लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेंगे ना, जब उनके अंदर खुशी लेके आएगी, सर इसको सेवा समझ कीजिए। When I called all my staff and said we are not able to give you 100% salary because during this pandemic, right, you are getting only 70% and 30% you are not getting, और मैंने उनको पता कैसे समझाया, ये 30% परमात्मा ने आपसे सेवा के रूप में लिए हैं अगले 3 महीने या 4 महीने, क्योंकि हम 10% तो हम सेवा में नहीं निकालते। जिसकी 500 रुपए इनकम है वो तो 50 रुपए निकाल देगा, जिसकी 1 लाख रुपए इनकम है वो 10,000 निकालने में उसकी जान निकलेगी। तो मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ कि 70-70-30 है, कि 30% परमात्मा ने लिए हैं कि यू शुड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, यू शुड कंट्रीब्यूट। खुश रहिए सर, एक रोटी में भी हमें खुशी मिलती है अगर हम खुशी, दैट इज इंटरनल टू एक्सटर्नल, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म। सो दिस इज द आंसर सर।
Any other questions in your mind? Any other questions? You can feel free to ask any questions in your mind. Hanji, there is one more question, Kular sir, from Yes, please, ma'am. Chaudhary ma'am. Wants to ask, sir, some students don't take interest in social study. How can we increase their interest in social study? Social study में बड़ा easy है मैम. If you want to create interest in social study, because I already figured out 76% of our studies in the left brain and 24% is in the right brain. That right brain falls imagination, picturization, images. If you want to explain, say for example, there is a movie called Bajirao Mastani, there is a movie called Bajrangi Bhaijaan. अगर हम बच्चे को वो बुक देते पढ़ने के लिए तो बच्चा उसको एंजॉय नहीं करता, लेकिन जब वो मूवी की फॉर्म में आया तो बच्चा उसको एंजॉय करता है. तो जो उसकी स्टोरीज है उसके अंदर, सोशल स्टडीज के अंदर, ठीक है, तो अगर कोई भी, अगर उसमें सबसे ज्यादा बोरिंग क्या होता है, उसमें बच्चे को सन्स याद करने मुश्किल होते हैं जो मेमोरी टेक्निक की हेल्प से याद हो जाते हैं आसानी से. मैं आने वाले वर्कशॉप्स में आपको बताऊंगा कैसे याद हो जाते हैं वो, क्या क्या मेथड्स है. साइंस के लिए क्या मेथड है, इंग्लिश वोकैबुलरी, जो हम सारी जिंदगी वोकैबुलरी के लाखों वर्ड सुनते हैं, लेकिन जब हम लिखने पे आते हैं हम 5-10 वर्ड से ज्यादा लिख नहीं पाते. और वन ऑफ माई कलीग डॉक्टर मिसिस नीरजा राय चौधरी, आप गूगल पे सर्च करना, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था आज से कोई 7 साल पहले. ऑक्सफोर्ड की पूरी डिक्शनरी याद कर ली उन्होंने, पूरी डिक्शनरी. आप पेज नंबर किसी से भी उनको कुछ भी पूछो, पावर ऑफ निमोनिक्स की मैं बता रहा हूँ. तो सोशल स्टडी में जब आप उनको स्टोरीज की तरह समझाओगे, जैसे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं, ठीक है, एडम एंड ईव पढ़ाते हैं, रोमियो जूलियट पढ़ाते हैं, और लिटरेचर है, जब आप उसको स्टोरी में कन्वर्ट कर दोगे, क्लास में रोज 2-4 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, स्टोरी की फॉर्म में पढ़ाओगे, इमेजिनेशन जिसमें इन्वॉल्व होगी, एसोसिएशन जिसमें इन्वॉल्व होगी, तो ऑटोमेटिकली बच्चा कंसंट्रेशन देगा और वो अच्छे से सोशल स्टडी कर पाएगा. अनफॉर्चुनेटली बच्चा रीड करता है, उसको क्रैम करने पड़ते हैं सन्स जो है, फिर उसको स्टोरी की वही बात है ना, वो टेक्स्ट को इमेजेस में कन्वर्ट ही नहीं कर पाता. तो ये सबसे बड़ा विडंबना है अनफॉर्चुनेटली. तो उसको इमेजिनेशन के थ्रू स्टोरी की फॉर्म में आप कराइए उन चीजों. Any other question, ma'am? I don't think so. Okay. So thank you, Sachin sir, for sharing these memory secrets and techniques with us. I hope our teachers will implement it and it will be really fruitful for all of us. So it looks like we have covered all of our questions and you have answered them very nicely. Now I would request Mrs. Vibha Tyagi, Headmistress Petty Penguin, to propose her vote of thanks. Over to you, Vibha ma'am. Good morning, all of you. Am I audible? Yes, ma'am. Am I audible to all? Yes, ma'am. Okay. So, respected Chairman, sir, Mr. D.K. Modi ji, Meghra Sharma, sir, CEO of our foundation, the most distinguished chief guest of the day, Dr. Sachin Khullar ji. Namaste, sir. Namaste, ma'am. Our officiating principal, Ms. Gurmeet Gupta, host of the webinar, Mr. Manish, Mr. Anush Tiwari from IT department, our HOD English, Ms. Vandana Rotela. Namaste, all of you. And as everybody before me, Vandana ma'am, Miss Vandana told you about me that I am headmistress of junior branch of Dr. K.N. Modi Global School. Its name is Pretty Penguins. And my name is Vibha Tyagi. I deem it a great honor to propose a vote of thanks on behalf of Mr. D.K. Modi ji, Chairman of Dr. K.N. Modi Foundation, Modi Nagar and Rajasthan, our CEO, Mr. Meghra Sharma ji, and to all who have helped us making in this webinar such a resounding success. First of all, I would like to propose hearty vote of thanks to our chief guest and motivational speaker, Dr. Sachin Khullar ji, for gracing today's webinar. I especially liked his speech where he mentioned change is needed. Nazariya is needed to change. और in my opinion you can say परिवर्तन संसार का नियम है, जो मुझे समझ में आया. And I just correlated it to with Amitabh Bachchan's movie. गुरुकुल वाली एक मूवी आई थी, I don't remember, मोहब्बतें. तो उसमें भी यही कहा गया था, परिवर्तन संसार का नियम है जी. So परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन.
in Yeah. that manner. Yes. So this is most important to upgrade ourselves by the change of time. Also depends on us. As you told, also depend on us whether we choose dark side or light side. So your speech, the stories which you explained, so many stories you explained, those were exemplary. So thank you, sir. And thank you, of course, for that junior master, Tanish Mittal. I would like to say thanks to him also to share his idea. Thank you, Tanish. Welcome, ma'am. You are so Welcome, young ma'am. Welcome. and you are a motivational, Welcome so much, you are ma'am. like a hero Welcome of to you. young generation. Tanish Mittal. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you in simple. Kularji, we would like to see you sometime when after the COVID in the school. Yeah. Naveen. Sure, ma'am. Sure. It's my privilege, ma'am. Yeah. Because It's our privilege, For a ma'am. very thought-provoking address. I like to request I to bring would like to the schools yeah. when after the corona, so that we can have interaction, face-to-face interaction with him, and we can listen to him more than 1 hour, 2 hours. Yeah. Sure, ma'am. Definitely. 100%, ma'am. 100%. This is a promise to you. Okay. Right? Education कि मैं एक ही चीज कहता हूँ मैम टू ऑल ऑफ यू लास्ट में या जी 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 कि जो सफर करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, जो सफर करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, एक बार रास्ते पे चलने का हौसला तो कीजिए, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते पे इंतजार करें. बिल्कुल सही बात सर. Sir, well said. Thank you sir so much again, and I would like to say thank you to Indanica Publication for giving us this opportunity. Thank you sir. I would like to thank Mr. Manish for hosting such a wonderful webinar and give the opportunity to share the views. As we are sharing our views to each other, I would like to express our profound gratitude to our officiating principal, Ms. Gurmeet Gupta, for her presence, motivation, and guidance in this webinar. And Gurmeet ma'am, you motivated me a lot. In fact, to all, as you said in starting, where there is a will, there is a way. That is very means motivational sentence. So thank you, Gurmeet ma'am, for this. You always guide us in a So thank you to all. No, there is some problem, I think. Vibha, So I would like to express, as I say, motivation. Am I audible to you? Am I audible to you? Yes, ma'am. Webinar can become successful with a single person. So I extend my big thanks to Mr. Anuj from IT department. Mr. Anuj, am I audible to you? Yes, ma'am, you are audible to me. Thank you very much. Okay, as you supported in technical guidance and making the webinar success. I would also like to thank our beloved HOD, Ms. Vandana. Vandana Rotela, ma'am, thank you so much for your moral support. Thank you, ma'am. To express, yeah, Vandana, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. I'm happy to express word of thanks to our staff members who have made this webinar a grand success. I thank all the people who have participated and the volunteers who have questioned to Dr. Sachin Kularji and making the webinar so much interactive. So once again, thank you so much guys for your cordial contribution. Thank you so much. Jai Bharat. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Now we have reached to the end of this webinar. Thank you for joining us. Have a great weekend ahead. Thank you, sir. Thank you, Sachin, sir. Thank you, Gurmeet, ma'am. Thank you, Anush Tiwari, sir. Thank you, Vibha, ma'am. Thank you. Thank you.